हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन डिज़ाइन वर्ल्ड। सो आज हमारा डे 3 सेशन है। जैसे अभी तक आपने पहले डे 1 डे 2 के सेशन देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर हम डे 3 में जाएंगे। जैसे अभी तक हमने सीखा कि स्केचिंग यूज़र इंटरफेस कैसे वर्क करते हैं, स्केचिंग कैसे, बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या होती है, सेटिंग्स क्या होती है आपकी, यानी आप सॉल्वबॉक्स से गो थ्रू तो हो चुके हो। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे वॉल्यूम कैसे क्रिएट करते हैं, वॉल्यूम क्रिएट करने के कौन से ऑप्शंस होते हैं, वॉल्यूम कट करने के कौन से ऑप्शंस होते हैं आपके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Today we are cover basic part modeling, basic 3D part modeling. This is the agenda of the day. So I just started from the beginning. Here I just go back to my SolidWorks. When I just start, first of all you need to start your part modeling. Whenever you double click on your graphic area, then the welcome window arrive of SolidWorks. You can go by the help of shortcut. Just press Ctrl N. This way you can click here. It is also a shortcut of Ctrl N. Just go to your SolidWorks file and new. This is the different ways to open a new document. So first of all we just start from the part modeling. I just click on part and click on OK. When you click OK, the part modeling window arrive. Now we just start making a volume object. First we need to know how we want to select a plane for making a object, for making a object on a specific orientations. So there is three plane: front plane, top plane and right plane. So the basic concept as according to me, that when you see your object from the left hand side, then you just select the front plane and start making from the left hand side. When you see your object from the top, then you just select a top plane, and when you see the object from the right hand side, then select a right plane. So this is the basic for your selecting your plane for making any object by 2D. So I just selected any plane, like I just select a front plane first of all and start making an object. So I already covered the sketch tools here. So we just start from the features tool. So we have 5 way to make a volume object and 5 different way to cut a volume object. So this is the 5 way. First of all, extrude boss. Extrude, like we just make a volume object normal to plane और normal to sketch. मैंने front में अपना sketch create किया. Then like front is created by x and y, then z में आपको volume create हो रहा है. अगर आपने y z में create हुआ किया है तो then x में volume create होगा. इन third axis में volume create होते हैं. Then the next option is revolve. Revolve means about an axis. Whenever we just create any object from about an axis, that means we want to use a revolve command. For example, like you want to make a host pipe, you want to make a cylinder, you want to make a any object which is symmetric from the outer side. That object is created by the help of revolve. Okay, you can use a revolve command. Then sweep, you can say sweep also. For sweep command you need to make a प्रोफाइल फर्स्ट एंड देन मेक अ पाथ. लाइक कि आपको अपने हाउस होल्डिंग या फिर एनी कोई भी इंडस्ट्री में आपको अगर पाइपिंग वगैरह क्रिएट करनी है, देन हाउ यू नीड टू फर्स्ट क्रिएट अ पाथ कि कहाँ आपको पाइपिंग या वायर वगैरह क्रिएट करना है. देन आपको फॉर एग्जांपल यू हैव टू क्रिएट अ वायर, देन आपने पाथ क्रिएट कर दिया, देन वायर का क्रॉस सेक्शन क्या होगा, सर्कुलर होगा, देन प्रोफाइल आपका सर्कुलर बनेगा. व्हाट स्वीप कमांड डज कि आपका प्रोफाइल उस पाथ को फॉलो कर जाएगा. द नेक्स्ट वे इज लॉफ्ट कमांड. तो अंडर लॉफ्ट कमांड मीन्स मल्टी सेक्शन सॉलिड, लाइक कि आपको डिफरेंट सेक्शन में वॉल्यूम क्रिएट करना है, देन यू जस्ट गो फॉर द लॉफ्ट कमांड. द लास्ट ऑप्शन इज बाउंड्री बॉस. Boundary boss, it is combination of sweep and loft command also. You can use as a sweep, you can use as a loft, or it is more flexible than loft, but it is more similar than loft also. कि लाइक आपको लॉफ्ट जैसे ही आपको लुक है, मीन्स आप यूज़ कर सकते हो. ओके, 5 कमांड विच यूज टू मेक अ वॉल्यूम, दैट वाज एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप, लॉफ्ट एंड बाउंड्री. एंड देयर इज 5 डिफरेंट वे टू कट अ वॉल्यूम, दैट वाज एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप, लॉफ्ट एंड बाउंड्री कट. Let's move to SolidWorks and need to understand in deeper way. Okay, I just go back to SolidWorks. Here I just make a x square with the help of sketch. The minus sign in feature manager indicate that the feature the sketch which I have created is under define, not in define way. Okay, so I just select a sketch, select extrude command, or the sketch is created under x and y.
अंडर एक्स एंड वाई। सो मैंने यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट कर दिया। यू कैन क्रिएट अ वॉल्यूम विद द हेल्प ऑफ इंस्टेंस 3D। दिस इज इंस्टेंस 3D कमांड, ओके, like instance 2D which we already seen in our features sketch tools, okay। और आप यहाँ पे वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हो, लाइक आई जस्ट गो एंड मेक अ 50 or whatever you need to create, okay, like 70 and 80। I just select here, okay, and create a volume object like cube, okay। If I need to edit a command and edit our features, so what I need to do, I just go and click on Boss Extrude. Here you found in options that what edit feature, so I just click on edit feature. Here you have different way to create a volume with the like blind means you need to provide a dimensions. Then there is different options like up to vertex, up to surface, offset from surface, up to body and mid plane. So we can see one by one, okay। I just click OK. I just make a new, use a new document and make some volume object for an example। लाइक मैंने यहाँ पे कुछ रेक्टेंगल्स क्रिएट किए। राइट नाउ आई डू नॉट वांट टू मेक फुली डिफाइन ऑब्जेक्ट, ओके। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन द फंडामेंटल्स ऑफ स्केच। सो व्हाट आई डू, आई जस्ट एग्जिट फ्रॉम हियर एंड मेक वॉल्यूम ऑब्जेक्ट फ्रॉम विद द यूज ऑफ एक्सट्रूड कमांड, ओके। सो मैंने ये ये फेस सेलेक्ट किया एंड फेस पे सिलेक्ट करते आई जस्ट सिलेक्ट अ स्केच कमांड हियर, ओके। व्हेन आई क्लिक ऑन स्केच तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ये वो नॉर्मल हो जाएगा आपके प्लेन के, ओके। वो आप सेटिंग्स डिफाइन कर सकते हो अपने सॉल्ववर्क्स की सेटिंग्स में। क्लिक ऑन सिस्टम ऑप्शन हियर, गो टू योर स्केच, और दिस इज सेटिंग फॉर मेकिंग योर ऑब्जेक्ट नॉर्मल टू यू। ऑटो रोटेट व्यू नॉर्मल टू स्केच प्लेन ऑन स्केच क्रिएशन एंड स्केच एडिट, ओके। दिस इज you need to enable, you need to check this option. If you uncheck this option and when you click on add any face, like I just select this face and make a sketch on this face, ये आपका नॉर्मल नहीं होगा, ओके। सो मैंने यहाँ पे एग्जिट किया, अगेन सेटिंग्स में गया, स्केच पे क्लिक किया एंड दिस ऑप्शन मैंने चेक कर दिया, ओके, एंड सेलेक्ट दिस फेस एंड स्केच, ओके। तो ऑटोमेटिक नॉर्मल हो गया। सो आई जस्ट मेक अ सर्कल हियर, exit, go to your extrude command। so let's see the different options of extrude command। so first of all, blind option, here you need to provide the dimensions। the next option is through all। when you click on through all, that means the command which you want to make, like आपको जो सिलेंडर क्रिएट करना है वो आपके लास्ट बॉडी तक थ्रू यानी क्रॉस करेगा, ओके। व्हेन यू क्लिक रिवर्स डायरेक्शन तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे आपकी लास्ट बॉडी के वहाँ तक आपको क्रॉस करके प्रोवाइड करेगा। द वेरी सेम वे व्हेन यू गो फॉर द एक्सट्रूड कट ऑप्शंस एंड सिलेक्ट द सर्कल, सिलेक्ट द स्केच। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, वेन एवर यू सिलेक्ट एनी कमांड द प्रॉपर्टी बार ऑटोमेटिकली ओपन, द प्रॉपर्टी मैनेजर ऑटोमेटिकली ओपन एंड द फीचर मैनेजर डिज़ाइन ट्री शिफ्ट टू योर ऑन योर ग्राफिक एरिया, लाइक हियर, कि आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया। So I just select a sketch from the feature manager design tree and select the through all option here on change the direction। तो आपको जैसे एक्सट्रूड कमांड वर्क करता है वैसे ही आपके सेम प्रॉपर्टीज़ के साथ आपका एक्सट्रूड कट भी वर्क करता है, यानी सेम आपको ऑप्शंस देखने मिलेंगे यहाँ पे। जैसे आई जस्ट क्लिक ऑन एक्सट्रूड कट थ्रू ऑल तो ऑटोमेटिकली सारी बॉडी को वो कट कर देगा। अगर यही कमांड मैं एक्सट्रूड में यूज़ करता हूँ, आई जस्ट क्लिक ऑन एक्सट्रूड, तो ऑटोमेटिकली वो थ्रू क्रिएट करके आपको वॉल्यूम क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ अप टू नेक्स्ट। व्हेन यू क्लिक ऑन अप टू नेक्स्ट तो वो आपके नेक्स्ट बॉडी तक वॉल्यूम क्रिएट करके देगा। इट इज़ अ शॉर्टकट वे टू सेलेक्ट एनी कमांड, लाइक कि आपको नेक्स्ट तक करना है या अप टू वर्टेक्स तक पॉइंट वॉल्यूम क्रिएट करना है, तो आपको वैल्यू टाइप करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है ऐसे केस में। अप टू वर्टेक्स, लाइक मुझे वर्टेक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा, मुझे इस वर्टेक्स का वॉल्यूम क्रिएट करना है या इस वर्टेक्स का वॉल्यूम क्रिएट करना है, ये वर्टेक्स रिक्वायरमेंट है, आपको वर्टेक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने इस वर्टेक्स तक वॉल्यूम क्रिएट करना है, यहाँ तक हो गया, इस वर्टेक्स तक क्रिएट करना है, यहाँ तक हो गया। अप टू सरफेस, सरफेस तक वॉल्यूम क्रिएट करना है, सरफेस आप सेलेक्ट कर सकते हो, इस सरफेस तक करना है या इस सरफेस तक करना है, ओके। वन मोर थिंग कि जैसे मैंने इसको नॉर्मल किया तो जैसे भी आपका सरफेस हो, अगर मैं यहाँ पे ब्लाइंड क्रिएट करता हूँ, आई जस्ट गो एंड सेलेक्ट अ ब्लाइंड ऑप्शंस, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे एक लिमिट के बाद अगर आपका आगे कर्वेचर हो, तो यहाँ पे गैप रिमेन रह जाता है। तो ऐसे केस में या तो आप इंटरसेक्ट करके वॉल्यूम क्रिएट कर लो, कोई इशू नहीं, या आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, जैसा आपको सरफेस मिलेगा आगे तो वैसे ही वो अपना शेप भी ले लेगा। उस केस में वो सर्कल को मेंटेन नहीं रखेगा कि आपको आगे सीधा प्लेन जैसे ही एक्सट्रूड करके देगा।
तो अप टू नेक्स्ट या अप टू सरफेस या अप टू जैसे सिलेक्शंस में उस अकॉर्डिंग वो मूव ऑन कर लेता है, अटैच कर लेता है हम लोग को। ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, व्हेन यू सेलेक्ट एनी सरफेस, लाइक मुझे ये सरफेस सेलेक्ट करना, तो इस सरफेस से 38 mm पहले या 30 mm आगे तक मुझे एक्सट्रूड करना है, यानी उस एंटिटी तक नहीं, उस एंटिटी के आगे या पीछे तक मुझे वॉल्यूम क्रिएट करना है। ओके, अप टू बॉडी, बॉडी तक वॉल्यूम क्रिएट करना, इस बॉडी तक वॉल्यूम क्रिएट करना, या इस तक या यहाँ तक वॉल्यूम क्रिएट करना, बट बॉडी सामने होनी चाहिए। अगर आप साइड वाली बॉडी सेलेक्ट करोगे तो ऐसे केस में आपका वो ऑब्जेक्ट या आपका वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। बट अप टू सरफेस के केस में आप सरफेस चाहे साइड वाली सरफेस सेलेक्ट कर लो, क्योंकि ये इन्फिनाइट प्लेनर सरफेस को वो इन्फिनाइट एज्यूम करता है, बट सरफेस उसके जस्ट नॉर्मल होना चाहिए, उसके पैरेलल नहीं होना चाहिए। अगर पैरेलल सरफेस सेलेक्ट करोगे तब भी वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उससे एंड नहीं पता कहाँ तक उसको वॉल्यूम क्रिएट करना है। मिड प्लेन, लाइक कि आप अगर ब्लाइंड यूज़ करते हो तो 38 mm एक ही साइड आपको वॉल्यूम क्रिएट करके देता है, बट व्हेन यू सेलेक्ट अ मिड प्लेन डैट मीन्स वो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली डिवाइड कर लेगा 2 पोर्शन में, ऑटोमेटिकली दोनों पोर्शन में टोटल 38 mm वो वॉल्यूम क्रिएट करके देगा आपको। If you need to create from this cylinder to this cylinder, then how you need to do that? I just select a up to surface option first of all in direction 1 tab. Then I just go for the direction 2 tab. The direction 2 tab is very similar to the direction 1. Here I just select to up to surface, the same option. तो आपके इसमें भी आपका सेम ऑप्शन ही आपको देखने मिलते हैं। सो अप टू सरफेस तक मैंने क्लिक किया। ओके नेक्स्ट आई जस्ट अनचेक दिस कि मुझे एक ही डायरेक्शन में वर्क करना है। डायरेक्शन 2 आपको डायरेक्शन 1 का जस्ट अपोजिट बिहेव करता है। ओके, आई जस्ट क्लिक ओके, आई जस्ट मूव टू योर प्रीवियस विंडो। अगर आपको विंडो चेंज करनी है जस्ट गो टू योर विंडो ऑप्शन, पार्ट 2 ओपन करना है। अगेन चेंज करनी है सॉलिडवर्क्स पे जाओ, आप इसको पिन करके रख सकते हो, बार बार अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इसको पिन करके रखो, देन आप यूज़ कर सकते हो विंडो पार्ट 1। और यू कैन यूज़ दी शॉर्टकट कमांड दैट वाज कंट्रोल प्लस टैब। ओके, दैट इज़ कंट्रोल प्लस टैब। एक्सट्रूड क्रिएट करते समय ये भी डिफाइन कर सकते हो कि मुझे इसे टेपर करना है। इफ़ यू नीड टू क्रिएट अ टेपर विद रिस्पेक्ट टू योर एक्सट्रूड डायरेक्शन, दैट ऑल्सो पॉसिबल। ओके, लाइक मुझे इसको टेपर करना है, कितने डिग्री टेपर करना है आप यहाँ पे टेपर टाइप कर लीजिए। लाइक मुझे टेपर क्रिएट करना है 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री, तो आप नॉर्मल टू एक्सट्रूजन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपने टेपर क्रिएट कर सकते हो। लाइक 10 डिग्री, तो अगर मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन क्रिएट करता हूँ तो उससे 10 डिग्री इनवर्ट आपका टेपर क्रिएट होता है। यानी एक्सट्रूड करते करते भी आप ड्राफ्ट प्रोवाइड कर सकते हो, एक्सट्रूड करते करते भी आप ड्राफ्ट प्रोवाइड कर सकते हो। इफ़ यू क्लिक ऑन ड्राफ्ट आउटवर्ड तो ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ ड्राफ्ट होगा। आई जस्ट अनचेक दिस ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेट एक्सट्रूड होगा। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट ऑप्शन। Okay, if you make 2 sketches or one inside the other one, मतलब एक दूसरे के अंदर है, so if you select this type of object that means तो आपका कॉमन एरिया ही एक्सट्रूड करके देगा, कॉमन एरिया ही आपको एक्सट्रूड करके देगा कि ऐसा एरिया जहाँ पे आपका कॉमन एरिया है, कॉमन रीजन ही एक्सट्रूड करके देगा, जहाँ पे आपके स्केचेस एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं और एक ऑब्जेक्ट एक स्केच दूसरे के अंदर है। ठीक है, दोनों आपको एक्सट्रूड करके नहीं देंगे, क्योंकि ऐसे केस में आपको सर्कल का कोई मीनिंग नहीं रहता, क्योंकि आपका रेक्टेंगल पूरी बाउंड्री कवर कर लेता है। तो ऐसे केसेस में वो क्या करता है, सिर्फ कॉमन एरिया या कॉमन रीजन को ही एक्सट्रूड आपको प्रोवाइड करता है करके। इफ़ दी स्केच लाइक आपका वो सर्कल बाहर है, अगर आपको वो सर्कल बाहर है, लाइक मैंने यहाँ पे सर्कल क्रिएट किया, एग्जिट किया, क्लिक ऑन एग्जिट, एक्सट्रूड, और जैसे मैंने यहाँ पे सर्कल बाहर क्रिएट किया था, दोनों के दोनों आपको एक्सट्रूड फॉर्म में दिखाएंगे, यानी वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में आपस में कोई भी कनेक्शंस नहीं है, मतलब दोनों एक दूसरे के टच में नहीं, इंटरसेक्ट क्रिएट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे इनका कोई कॉमन रीजन भी क्रिएट नहीं हो रहा, तो ऐसे केस में वो क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों एक्सट्रूड ही क्रिएट करके देते हैं आपके। ओके, अगर आपका स्केच ऐसी कोई कंडीशन हो जहाँ पे आपके स्केच इंटरसेक्ट्स हो रहे हैं एक दूसरे से, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, व्हेन यू क्लिक ऑन एक्सट्रूड वो ऑटोमेटिकली कोई भी सिलेक्ट नहीं करता। आपको ऐसी कंडीशन में
खुद आपको प्रोवाइड करना पड़ता है कि कौन सा रीजन एक्सट्रूड करना है। यानी विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट कॉन्टूर पोर्शन आप ये प्रोवाइड कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो कि कौन सा पोर्शन आपको एक्सट्रूड करना है, कौन सा नहीं करना है। वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट नहीं करता। जैसे मुझे ये एक्सट्रूड करना है, मुझे ये भी एक्सट्रूड करना है, कितने mm एक्सट्रूड करना है आप यहाँ पे वैल्यू टाइप कर सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शन मैं आपको बता चुका हूँ। तो लाइक 148 एक्सट्रूड करना है एंड क्लिक ओके। मुझे सेम स्केच वापस यूज़ करना है, स्केच 1, और मुझे एक्सट्रूड कट करना है इस बार। तो आई जस्ट क्लिक ऑन एक्सट्रूड कट, मुझे एक्सट्रूड कट यूज़ करना है। और कौन सा पोर्शन स्केच का मुझे यूज़ करना है, मुझे ये पोर्शन स्केच का यूज़ करना है कट करने के लिए। कौन से डायरेक्शन में कट करना है, सामने वाले पोर्शन डायरेक्शन में मुझे कट करना है। कितना कट करना है, यानी विद द हेल्प ऑफ स्केच कॉन्टूर आप ये भी डिफाइन कर सकते हो कि मुझे इतना ही पोर्शन यूज़ करना है, और अलग अलग कमांड के लिए यूज़ कर सकते हो एक सिंगल स्केच। ओके, लाइक मुझे ये कट करना है, मुझे फिर से वही स्केच यूज़ करना है, तो आप वापस स्केच पे क्लिक करके आप कमांड सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी कमांड, ऐसा कुछ नहीं कि यही कमांड, बस पॉसिबल हो वो। लाइक मैंने ये सेलेक्ट किया, मुझे इस डायरेक्शन में कट करना है। ठीक है, बट अभी तक हमने जो भी चीज़ें की, लाइक एक्सट्रूड करना है मुझे या कट करना है, तो ऐसे केस में मैं फ्रॉम सेलेक्ट कर रहा था। यानी फ्रॉम बाय डिफ़ॉल्ट जिस प्लेन पे मैंने स्केच क्रिएट किया वहीं से वो एक्सट्रूड क्रिएट करके दे रहा था। ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो कि मुझे एक्चुअली स्केच जो क्रिएट करना है कोई सरफेस फेस प्लेन के रेफरेंस से करना है, यानी इसके रेफरेंस से क्रिएट करना है। ठीक है, बट स्केच जब भी मूव ऑन करता है उसके आगे ही मूव ऑन करता, बाजू में मूव ऑन नहीं करेगा। डायरेक्शन मुझे पीछे के डायरेक्शन में कट करना है, ये मैं बता चुका हूँ। लाइक ओके, मुझे वापस स्केच यूज़ करना है, स्केच पे क्लिक किया, कट पे गया, मुझे कट यूज़ करना है। कौन सा पोर्शन यूज़ करना है कट करने के लिए, ये यूज़ करना है इस डायरेक्शन में। इस बार मैंने ऑफसेट ले लिया पॉइंट में कि मुझे इतने डिस्टेंस के बाद कट स्टार्ट करना है, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। अगर वापस एक्सट्रूड करना है, सेलेक्ट कर लो एक्सट्रूड कमांड, मुझे ये पोर्शन और ये पोर्शन एक्सट्रूड करना है। ठीक है, यहाँ पे भी आप ऑफसेट यूज़ कर सकते हो, यानी एक्सट्रूड कट सेम सिमिलर ही होते हैं आपके। ठीक है, इतने पोर्शन बाद एक्सट्रूड करना है, कितने एक्सट्रूड करना है, आई जस्ट गो एंड 10 मुझे एक्सट्रूड करना है। 10 इतने डिस्टेंस के बाद एक्सट्रूड करना है। आप ये वैल्यू दे दीजिए, ओके कर दीजिए और ओके। तो ऐसे भी आप एक्सट्रूड कर सकते हो और एक्सट्रूड कट कर सकते हो। नेक्स्ट, आई जस्ट क्लिक ऑन कंट्रोल एन, नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। मेक अ रेक्टेंगल क्रिएट किया, एग्जिट किया। रेफरेंस प्लेन में मैंने एक लाइन क्रिएट कर ली, एक लाइन क्रिएट कर ली। अभी तक हमने देखा कि थर्ड डायरेक्शन में ही वॉल्यूम क्रिएट करता है। ठीक है, मैंने इस पॉइंट को, यानी जिस स्केच के एडिटिंग मोड में मैंने वो सेलेक्ट किया, और जो पहले से स्केच बना के रखा है, जो नीचे रेक्टेंगल बना के रखा है, मैंने वो सेलेक्ट किया। जब ऐसे कुछ मल्टीपल स्केच, यानी डिफरेंट स्केच में अगर आपको रिलेशन देना हो, तो रिलेशन हमारा आता है पियर्स रिलेशन आता है। ओके, एग्जिट किया मैंने, एक्सट्रूड पे गया, मुझे ये वाला स्केच 1 एक्सट्रूड करना है। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि नॉर्मल डायरेक्शन में ही एक्सट्रूड करता है। मैं डायरेक्शन भी चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे, सिंपली रेफरेंस सेलेक्ट करके भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि मुझे इस डायरेक्शन में एक्सट्रूड करना है। ओके, ये भी आप कर सकते हो। स्केच 1 पे क्लिक किया, एक्सट्रूड पे क्लिक किया, ठीक है, और ओके। देन यू हैव ए फीचर थिन फीचर, आप थिन फीचर भी यूज़ कर सकते हो। थिन फीचर क्या करता है, थिन फीचर आपका थिकनेस प्रोवाइड करता है। थिन फीचर क्या करता है, आपको थिकनेस प्रोवाइड करता है। लाइक मैं इसको थिन को बंद कर देता हूँ, मैं थिन को मैंने क्लोज कर दिया। ओके, ऐसे केस में वो क्या करेगा कि आपने कोई बाउंड्री क्रिएट कर दी, लाइक 100 बाई 100 का आपका रेक्टेंगल बना के रखा है, आपको थिकनेस देना है उसके बाउंड्री से। अगर मैं एक और रेक्टेंगल बना दूँ इंसर्ट, तो क्या करेगा वो सिर्फ कॉमन रीजन ही एक्सट्रूड करता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। ऐसे थिन फीचर वर्क करता है। थिन फीचर क्या करता है, जो आपने बाउंड्री बनाई है और फिर आप जो वैल्यू दोगे 5, 10, 15, जैसे डायरेक्शन मैंने को इन्वर्ट करना, 5 mm दिया मैंने, तो हर एक साइड से वो क्या करेगा कि थिकनेस प्रोवाइड करेगा। जैसे इससे मुझे 5 mm, इससे मुझे 5 mm, या इससे मुझे 5 mm, या इससे 5 mm, उसने ऑटोमेटिकली एक और रेक्टेंगल इमेजिन कर लिया कि एक और रेक्टेंगल बनेगा। और ऐसे अगर एक और रेक्टेंगल होता तो वो क्या करता है, कॉमन रीजन ही एक्सट्रूड करता है, तो वही थिन फीचर क्रिएट करता है। तो थिन फीचर जैसा आपकी बाउंड्री है, अगर हेक्सागोन है तो हेक्सागोन शेप बनाएगा इनर, या फिर आपका ट्रायंगल तो ट्रायंगल शेप ही बनाएगा, सेम शेप जो आप वैल्यू यहाँ पे दोगे थिकनेस की। बट इनवर्ट या आउटवर्ड वो अपने अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि मिड प्लेन में आपको देना, जैसे आपने यहाँ पे मिड प्लेन सेलेक्ट किया तो 5 mm वो डिवाइड कर लेगा 2.5 इनर और आउटर। आप डायरेक्शन 2 भी सिलेक्ट कर सकते हो कि दोनों डायरेक्शन में आप अलग अलग वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, तो दिस वे भी पॉसिबल है आपका वॉल्यूम क्रिएट करना। वो कर एक ही चीज़ रहा है, वो एक्सट्रूड ही करके दे रहा है। ठीक है, सेकेंड, एंड कैप भी आप यूज़ कर सकते हो कि अगर ऊपर और नीचे आपको एंड कैप यूज़ करना है, और एंड कैप की थिकनेस क्या रखनी है आप वो भी डिसाइड कर सकते हो। थिकनेस हमेशा एक्सट्रूड डायरेक्शन भी क्रिएट करके देगा। ओके, ऐसा नहीं कि आप अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू दे सकते हो।
एंड कैप की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो बस, ठीक है। एंड कैप की वैल्यू आपने जो डालनी वो डाली एंड क्लिक ओके। अब आपको शो नहीं होगा क्योंकि आपने एंड कैप यूज़ कर लिया है। आप ऐसे केस में आप सेक्शन व्यू चेक कर सकते हो। सेक्शन व्यू पे जैसे मैंने क्लिक किया आप सेक्शन व्यू देख सकते हो कि कौन से प्लेन से मुझे सेक्शन देगा, टॉप, फ्रंट, साइड, अलग अलग वे से आप अलग अलग सेक्शन देख सकते हो उसके। जैसे मुझे ऐसे देखना ओके क्या, तो सेक्शन व्यू जस्ट प्रीव्यू है, वो एक कोई कमांड नहीं, वो कट नहीं करके देगा वॉल्यूम। जैसे आप टॉगल को ऑफ करोगे वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपने थिन फीचर यूज़ किया होगा तो आप थिन फीचर को अनचेक नहीं कर सकते हो, थिन फीचर को अनचेक नहीं कर सकते हो। यानी अगर थिन फीचर आपने यूज़ किया तो वो अनचेक नहीं कर सकते हो, आपको डिलीट करना पड़ेगा कमांड, देन आपको वापस यूज़ करना पड़ेगा कमांड को, ठीक है। तो अगर यूज़ करना हो तो आप उस पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो रहने दीजिएगा। जैसे अगर आपने थिन फीचर यूज़ नहीं किया है और ओके कर दिया और फिर आपको याद है कि मुझे यूज़ करना था, एडिटिंग में जैसे ही आप जाओगे एडिट फीचर में वो थिन फीचर का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो थिन फीचर आपको अगर यूज़ करना हो तो पहली बार में सेलेक्ट कर लीजिएगा और नहीं करना तो पहली बार में अनचेक कर लीजिएगा, ओके। तो ये ऐसा करके आप अपना वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो। तो एक्सट्रूड और एक्सट्रूड कट आपका सेम वे में ही वर्क करता है जैसे अभी हमने देखा, ठीक है, सेम प्रॉपर्टी मैनेजर होता है। नेक्स्ट रिवॉल्व कमांड। रिवॉल्व कमांड सिमेट्रिक क्रिएट करता है एक एक्सिस के अबाउ। सो लाइक मैंने फ्रंट प्लेन सेलेक्ट किया, मुझे वॉल्यूम क्रिएट करना है, ओके। स्ट्रेट क्रिएट नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर क्लिक करके मैंने रिलेशन ऐड कर दिया, जो मैंने लास्ट टाइम आपको रिलेशंस के रिगार्डिंग बताया था, ओके। नाउ मुझे रिवॉल्व क्रिएट करना है। आई जस्ट क्लिक ऑन रिवॉल्व, सिलेक्ट एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन, जिसके अबाउ रिवॉल्व करना है मुझे, जैसे इसके अबाउ रिवॉल्व करना है तो वो सिमेट्रिक ही क्रिएट करता है, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउ हर एक एंटिटी आपकी रिवॉल्व होती है। जो भी आप एक्सिस और रिवॉल्यूशन बनाते हो, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो इसके अबाउ वो रोटेट करके आपको वॉल्यूम क्रिएट करके देगा। इसको सिलेक्ट किया, इसके अबाउ वॉल्यूम क्रिएट करके देगा। बट ऐसा कोई स्केच सिलेक्ट नहीं करना जिसके अबाउ वो इंटरसेक्ट क्रिएट करे। जैसे अगर मैंने ये लाइन सेलेक्ट कर ली तो ऐसे केस में वो इंटरसेक्ट क्रिएट करेगा, क्योंकि ये पोर्शन आपका आउटर जा रहा है एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन के। तो ऐसे केस में आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। ये सेलेक्ट कर सकते हो, ये सेलेक्ट कर सकते हो, यानी आउटर एजेस को आप सेलेक्ट कर सकते हो जिसके अबाउ आपको रिवॉल्व करना है, ओके। कितने डिग्री रिवॉल्व करना है आप यहाँ पे वैल्यू दे दीजिए। जैसे मुझे देना है 270 डिग्री रिवॉल्व करना है, 270 डिग्री ओके कर लीजिए। यहाँ पे भी आप डायरेक्शन 2 यूज़ कर सकते हो अगर आपको यूज़ करना है डायरेक्शन जस्ट अपोजिट टू डायरेक्शन 1, ठीक है। ब्लाइंड अप टू वर्टेक्स अप टू सरफेस, इसमें भी आप ये यूज़ ऑप्शन कर सकते हो। थिन फीचर अगर थिकनेस प्रोवाइड करना है, ओके। जैसे मैंने थिन पे क्लिक किया वो अब कमांड एक्सेसिबल नहीं है, अब वो ऑटोमेटिक एरर भी आपको शो करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर जैसे मैंने डायरेक्शन चेंज किया अब पॉसिबल है, क्योंकि आप जो थिकनेस प्रोवाइड कर रहे हो लाइक 2 mm 5 mm जो भी आप वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो थिकनेस तभी इनसाइड ही पॉसिबल, क्योंकि एक्सिस और रिवोल्यूशंस के अंदर ही पॉसिबल है। अगर आउटर करोगे तो इंटरसेक्ट क्रिएट होगा। इंटरसेक्ट वो पॉसिबल वे में, इंटरसेक्ट के केस में वो आपको स्केच या वॉल्यूम क्रिएट नहीं करके देता है, ओके। तो इनवर्ड आप कर सकते हो थिन में, लेकिन आउटवर्ड नहीं कर सकते। इनवर्ड कर सकते हो, आउटवर्ड नहीं कर सकते हो। अगर आपको आउटवर्ड ही करना है तो ऐसे केस में आपका एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन अलग होना चाहिए, जिसके अबाव आपको रिवॉल्व करना है। लाइक मैंने यहाँ पे सेंटर लाइन यूज़ कर ली और मुझे इस एक्सिस के अबाव रिवॉल्व करना है, ठीक है। जब भी आप सेंटर लाइन यूज़ करते हो और आप रिवॉल्व कमांड यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट वो सेंटर ऑफ लाइन को ही सिलेक्ट कर लेगा एज ए एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है। आपको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने सेंटर लाइन यूज़ की तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ग्रैब कर लेता उसको कि इसके अबाव ही आपको शायद रिवॉल्व करना होगा, ठीक है। अब बीच में आपको होलो क्रिएट हो रहा है क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट क्लोज कॉन्टूर आपका एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन के, ठीक है। ऐसे केस में आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो कि 270 डिग्री मुझे रिवॉल्व करना है या फिर, ठीक है, या मुझे थीन यूज़ करना है। अब थीन इनवर्ट या आउटवर्ड आप दोनों यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन आपका एक डिस्टेंस पे है, एक अपार्ट डिस्टेंस पे है, ओके। सिलेक्ट कॉन्टूर इसमें भी यूज़ कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर रीजन ही आपको एक्सट्रूड करना है, ठीक है। सेम कंडीशन यूज़ करोगे तो अनचेक नहीं कर पाओगे, यूज़ नहीं करोगे तो फिर से चेक नहीं कर पाओगे एडिटिंग मोड में, ठीक है। जैसे आपका वो रिमूव हो गया। इस केस में मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया। लाइक मुझे एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है तो आई जस्ट मेक अ रेक्टेंगल हियर, एग्जिट फ्रॉम दिस, एक्सट्रूड कट, सॉरी
एक्सट्रूड कट नहीं करना, मुझे रिवॉल्व कट करना है, तो आई जस्ट सेलेक्ट रिवॉल्व कट। रिवॉल्व कट में भी सेम ही ऑप्शंस आपको मिलते हैं, इन जो वॉल्यूम ऐड के ऑब्जेक्ट होते हैं ऑप्शंस होते हैं, वही वॉल्यूम कट के भी ऑप्शन होते हैं। आप सेम स्केच का यूज़ कर सकते हो फॉर प्रोवाइडिंग द एक्सिस और रिवोल्यूशन। जैसे मुझे इस एक्सिस के अबाउ मुझे रिवॉल्व करना है, मैंने स्केच को शो किया और सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग डिग्री टाइप कर सकते हो और ओके, तो वैसे ही आपका कट क्रिएट करके दे देगा जैसा भी आपको सिलेक्ट करना है। ओके, क्रॉस सेक्शन चेक कर लीजिए, मुझे टॉप प्लेन से शो करना है, सॉरी राइट प्लेन, और ओके, ठीक है। स्केच वगैरह को हाइड कर सकते हो, यहाँ पे वापस मैंने स्केच पे क्लिक किया, हाइड कर दिया, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपने प्लेन शो करके रखे, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया, शो एंड हाइड से सब कुछ कंट्रोल होता है, वो चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो ये आपका रिवॉल्व और रिवॉल्व कट है। नेक्स्ट कमांड देखते हैं स्वीप कट, स्वीप एंड स्वीप कट। मैंने पाथ बनाया एंड मेक अ प्रोफाइल एट द एंड ऑफ माय स्केच, लाइक मैंने कोई प्रोफाइल क्रिएट कर दिया लाइक रेक्टेंगल, एग्जिट, मैंने इसको स्वीप कर दिया इसके अराउंड। ओके, तो आप ये भी कर सकते हो कि प्रोफाइल बनाया, पाथ बनाया, उसको फॉलो करवा दिया, ठीक है। अगर आपको सर्कुलर प्रोफाइल यानी पाइप वगैरह बनाना है, यानी इसको ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, होस्ट पाइप, पाइप वगैरह कुछ भी, वायर वगैरह, तो ऐसे केस में आपको सिर्फ प्रोफाइल बना के भी आप काम यूज़ कर सकते हो। आप सिंपली सर्कुलर प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए, और ऐसे केस में आपको प्रोफाइल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ पाथ बनाओ और उस पाथ को ऑटोमेटिकली फॉलो कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप डायमीटर टाइप कर लीजिए, कितने डायमीटर का आपको वो फॉलो करवाना है। यानी सर्कुलर प्रोफाइल है तो सर्कुलर प्रोफाइल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एक्सेप्ट एंड सर्कुलर प्रोफाइल आपको वो क्रिएट करनी पड़ेगी। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस में जाके आप पाथ को फॉलो करना है आपको, या कीप नॉर्मल कॉन्स्टेंट्स, यानी अगर नीचे आपने प्रोफाइल रेक्टेंगल बनाया तो ऐसे ही कॉन्स्टेंटली वो रेक्टेंगल चलता रहेगा ऊपर तक, ठीक है। वो पाथ के साथ आपको मूव नहीं करेगा, पाथ के साथ आपको मूव नहीं करेगा। अगर आपने यहाँ पे वापस फॉलो पाथ कर दिया तो वो वापस उस पाथ के साथ राउंड होता रहेगा, फॉलो करेगा। ओके, प्रोफाइल ट्विस्ट, अगर ट्विस्ट करना है तो स्पेसिफिक ट्विस्ट वैल्यू, अगर आपको वैल्यू टाइप करनी कितना डिग्री आपको रिवॉल्व करना है, रिवोल्यूशन आप टाइप कर सकते हो कि मुझे इतने रिवोल्यूशन करने हैं, आप वो भी कर सकते हो, यानी इससे आप रो वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो। स्पेसिफिक डायरेक्शन वेक्टर, एक कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में आपको क्रिएट करना हो तो वो डायरेक्शन भी प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे फ्रंट प्लेन तो ऑटोमेटिक दिख रहा है, टॉप प्लेन लिया तो टॉप प्लेन के अकॉर्डिंग वो फॉलो कर रहा है प्रोफाइल, ठीक है। टेंजेंट टू एडजेसेंट फेस, कोई फेस को सिलेक्ट करो उसके अलॉन्ग आप टेंजेंट भी कर सकते हो, आप नीचे कोई फेस नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शंस आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो। देन नेक्स्ट देखते हैं आगे, जैसे इसमें भी आप थीन फीचर यूज़ कर सकते हो कि अगर थिकनेस के साथ आपको क्रिएट करना ओके कर दिया तो थिकनेस के साथ वो क्रिएट होगा आपका, ठीक है। और देखते हैं स्वीप में कुछ और नया, लाइक मैंने पाथ स्ट्रेट क्रिएट कर लिया एंड एक प्रोफाइल क्रिएट कर लिया एंड आई जस्ट सेलेक्ट अ प्रोफाइल सर्कुलर, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम अभी बताया था कि सर्कुलर आपको क्रिएट करने की नीड नहीं होती है, स्वीप ऑटोमेटिकली फॉलो करता है, ऑफ कोर्स फॉलो करता है। और मैंने यहाँ पे एक स्प्लाइन भी क्रिएट कर ली, मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट किया, और ये दूसरे स्केच से मैंने, जब आप कोई दूसरे मल्टीपल स्केच में रिलेशन प्रोवाइड करते हो देन वी हैव एन ऑप्शंस पियर्स, जो मैंने अभी बताया था आपको। ओके, एग्जिट किया, स्वीप कमांड में गया, स्वीप कमांड में मैंने सर्कुलर प्रोफाइल से आप फॉलो तो करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे गाइड कर्व आपको एक्सप्लेन करना है, तो गाइड कर्व में आपको प्रोफाइल बनानी पड़ती, चाहे सर्कुलर प्रोफाइल ही क्यों ना यूज़ हो आपकी, ठीक है। ये सिंपल सिलेंडर तो आप नॉर्मली एक्सट्रूड से भी कर सकते हो ऑफ कोर्स, बट मैंने गाइड कर्व सेलेक्ट किया, गाइड कर्व में मैंने ये स्प्लाइन सेलेक्ट कर लिया। तो गाइड कर्व क्या करता है कि आपको प्रोफाइल पाथ को फॉलो तो करेगा नहीं, गाइड कर्व उसके शेप को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, यानी विद द हेल्प ऑफ गाइड कर्व आप उसके शेप को मैनिपुलेट कर सकते हो। ओके, तो आप ये भी कर सकते हो। देन नेक्स्ट देखते हैं, जैसे इसमें मैंने थीन यूज़ किया था, मुझे थीन यूज़ नहीं करना, आई जस्ट अनचेक दिस
मुझे सिर्फ सर्कुलर प्रोफाइल फॉलो करवाना है। सर्कुलर प्रोफाइल सेलेक्ट किया, डायमीटर दे दिया मैंने, कितना डायमीटर मुझे फॉलो करना, ओके कर दिया। ज़्यादा डायमीटर देना तो एडिटिंग में गया, जस्ट सेलेक्ट है कि 100 mm मुझे डायमीटर फॉलो करवाना है, ठीक है। अब मैंने रेक्टेंगल पहले से बना के रखा है, मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया और मुझे इस रेक्टेंगल से स्वीप कट यूज़ करना है। जस्ट क्लिक ऑन स्वीप कट, तो सेम ऑप्शंस रहते हैं इसमें भी सारे आपके पास, ठीक है। स्केच प्रोफाइल, पाथ में पहले उसी का शो कर लूँगा जो मैंने यूज़ किया था, ठीक है। इसी पाथ में मैंने क्लिक कर दिया तो इसी पाथ को फॉलो करके वो कट भी कर देगा। सर्कुलर प्रोफाइल, सिर्फ सर्कुलर प्रोफाइल अगर कट करना है तो। सॉलिड प्रोफाइल, अगर आपने कोई टूल बॉडी वगैरह कुछ बना के रखी हो वो फॉलो करवाए तो सॉलिड प्रोफाइल भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं स्केच प्रोफाइल यूज़ करना चाहता हूँ, जो स्केच मैंने बना के रखा है, यानी सॉलिड बॉडी प्रोफाइल का मतलब है कि आपने कोई वॉल्यूम बना के रखा हो तो, ठीक है। देन पाथ सेलेक्ट किया, उसको फॉलो करके कट, यानी स्वीप और स्वीप कट भी आप यूज़ कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट होता है आपका लॉफ्ट। लॉफ्ट में डिफरेंट प्रोफाइल्स क्रिएट करनी पड़ती है, सेक्शंस बनाने पड़ते हैं, ठीक है। कितने भी सेक्शंस बना सकते हो, मैं कोई भी प्रोफाइल डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए, बाकी आपको डिफाइन करना है, ठीक है। ये बिना डिफाइन करके आप इंडस्ट्री में वर्क नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जो भी चीज़ें बनाते हो ऑफकोर्स पैरामीटर्स के साथ ही बनाते हो। तो मैंने ये स्केच रेक्टेंगल क्रिएट किया, देन मुझे इसके ऊपर एक और प्रोफाइल बनानी है, तो उसके ऊपर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद आपका प्लेन होना चाहिए। तो ऐसे केस में आप टॉप प्लेन पे वापस तो क्रिएट कर नहीं सकते, आपको नया प्लेन क्रिएट करना पड़ेगा एक अपार्ट डिस्टेंस के साथ। तो आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, रेफरेंस में जाओ, प्लेन पे क्लिक करो, और तो ये आपके पास एक्स्ट्रा प्लेन्स क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट यूज़ होता है कमांड। विद दी हेल्प ऑफ 3 रेफरेंस आप नया प्लेन क्रिएट कर सकते हो। लाइक मुझे फिलहाल एक ही प्लेन क्रिएट करना है, टॉप प्लेन मैंने रेफरेंस पे सेलेक्ट किया, एक डिस्टेंस के बाद मुझे क्रिएट करना है, तो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस वैल्यू दे दी, ठीक है। अगर मैं रेफरेंस 2 में मैंने अगर ये लाइन सेलेक्ट कर ली, ठीक है, जिससे रेफरेंस 2 में कॉन्स्टेंट मेट दिखा रहा है, और मैंने रेफरेंस 1 में मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर सेलेक्ट कर लिया, तो इस यहाँ पे कॉन्स्टेंट और यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहीं पे प्लेन क्रिएट होगा। अगर मैंने रेफरेंस 2 में मैंने चेंज कर दिया कि मुझे इस लाइन पे क्रिएट करना है, तो यहाँ से कॉन्स्टेंट, इससे परपेंडिकुलर, तो ऐसे भी आप क्रिएट कर सकते हो। एंगल प्रोवाइड कर सकते हो कि एक एंगल पे मुझे प्लेन क्रिएट करना था, तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास, आप क्रिएट कर सकते हो, ओके। मैंने डिस्टेंस पे क्रिएट कर लिया, तो यानी विद द हेल्प ऑफ 3 रेफरेंस आप ये क्रिएट कर सकते हो। नीचे की डायरेक्शन में क्रिएट करना है, यानी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। मल्टीपल प्लेन्स क्रिएट कर सकते हो करना हो तो आपको, ठीक है। लाइक मैंने मल्टीपल प्लेन क्रिएट कर दिए, 2 3 जो इतने भी क्रिएट करने हैं, इनके डिस्टेंस चेंज करने हैं। तो इंस्टेंस 3D अगर ऑन होगा तो आप इंस्टेंटली वैल्यू चेंज कर सकते हो, अगर इंस्टेंस 3D बंद होगा तो वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लाइक मुझे एक इतने डिस्टेंस पे क्रिएट करना था, ये मुझे मे बी चेंज करना है 100 46 वॉटेवर, वो क्रिएट कर सकते हो। प्लेन 2 मैंने सेलेक्ट किया, मुझे कुछ मुझे सर्कल प्रोफाइल क्रिएट करना है। नेक्स्ट प्रोफाइल जो मुझे क्रिएट करनी है, जिसके बीच में वॉल्यूम क्रिएट करना है, मुझे सर्कल क्रिएट करना है, तो आप वो कर सकते हो। प्लेन्स को हाइड कर देता हूँ, रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे। एग्जिट किया, प्लेन पे क्लिक किया, हाइड किया मैंने, ओके। मल्टीपल स्केचेस बना सकते हो जितने भी आपको क्रिएट करने हैं। मैंने लॉफ्ट में गया, डिफरेंट स्केच आप सेलेक्ट कर लो, और सेलेक्ट हमेशा लॉफ्टिंग ऑर्डर में सेलेक्ट करना है, लाइक 1 से 2 3 4, या ऊपर से टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, जैसे आपको लॉफ्टिंग करनी है उस ऑर्डर में सेलेक्ट करना है। ऐसा भी कुछ सेलेक्ट नहीं करना कि पहला सेलेक्ट किया प्रोफाइल, फिर तीसरा वाला सेलेक्ट करो, फिर दूसरा वाला सेलेक्ट करो। तो अगर पॉसिबल नहीं होगा तो वॉल्यूम क्रिएट नहीं करके देगा आपको, ओके। वॉल्यूम क्रिएट नहीं करके देगा। तो मैंने फ़िलहाल 2 प्रोफाइल सेलेक्ट कर लिए, ओके। ये आपके कनेक्टर्स होते हैं, कनेक्टर की हेल्प से आप इनके एजेस को चेंज कर सकते हो, मूव कर सकते हो, डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, और ओके। तो आपका देखो एजेस चेंज हो गया आपके, आप ये कर सकते हो। वैन यू क्लिक ऑन एडिटिंग तो ऑटोमेटिकली सारे कनेक्टर शो होने लग जाते हैं, जितने भी आपके 4 एजेस, यानी मैक्सिमम आपने जो स्केच यूज़ किया उसमें मैक्सिमम वर्टेक्स पॉइंट जितने होंगे उतने ही आपको वो क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो। मैंने इसको डिलीट किया, फिर से लॉफ्ट में गया, सिलेक्ट किया। मुझे फर्स्ट टाइम में ही अगर मुझे सारे कनेक्टर शो करने हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको स्केच के ऊपर राइट क्लिक करना है और शो ऑल कनेक्टर पे क्लिक करना है, शो ऑल कनेक्टर। तो सारे कनेक्टर पहली बार में ही आपको शो होने लग जाएंगे। इन केस आपने चेंज कर लिया उनको एक स्पेसिफिक एंगल पे, ठीक है। एंगल आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको इस सर्कल के ऊपर पॉइंट बनाने पड़ेंगे स्केच के अंदर, देन आप उस पॉइंट पे आप ये कनेक्टर पॉइंट्स पुटअप कर सकते हो। अगर आपको फिर से रीसेट करना है तो राइट क्लिक, रीसेट कनेक्टर, राइट क्लिक, हाइड ऑल कनेक्टर, आप हाइड कर सकते हो। राइट क्लिक,
शो कनेक्टर तो एक सिंगल कनेक्टर भी शो कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो कि आपका प्रोफाइल या आप जो वॉल्यूम क्रिएट करो तो कैसे क्रिएट करना है आपको। ओके, इसमें भी सेम आप गाइड कर्व यूज़ कर सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ पे राइट प्लेन पे एक गाइड कर्व क्रिएट कर लिया, स्प्लाइन। आई जस्ट सेलेक्ट स्प्लाइन। और हमेशा याद रखना कि जब दो स्केचेस को कनेक्ट करना हो तो आपको पियर्स रिलेशन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने पियर्स रिलेशन यूज़ किया, एग्जिट कर दिया, लॉफ्ट में गया, लॉफ्टिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैंने स्केचेस सेलेक्ट किया, गाइड कर्व को ओपन किया और गाइड कर्व सेलेक्ट कर लिया मैंने। तो उसके अकॉर्डिंग आपका शेप मैनिपुलेट हो गया। आपको दूसरी साइड में भी ऐसे ही शेप चाहिए तो आपको दूसरी साइड में भी गाइड कर्व क्रिएट करना पड़ेगा। बट एज ए फ्रेशर आपको मैं रिकमेंडेड करूँगा कि गाइड कर्व हमेशा अलग अलग स्केच में क्रिएट करना है। जैसे स्केच 3 है ये, आप नया फिर से प्लेन सेलेक्ट कर लो जिस प्लेन में आपको गाइड कर्व क्रिएट करना है। जैसे राइट में क्रिएट करना है, स्केच 4 क्रिएट कर लो और इसमें गाइड कर्व क्रिएट कर लो। अगर आपने स्केच 3 में ही मिरर विद द हेल्प ऑफ मिरर आपने गाइड कर्व क्रिएट कर लिया कि आपने सोचा कि चलो मैं उसी में दूसरा गाइड कर्व क्रिएट कर लूँ, और मिरर तभी यूज़ कर सकते हो कि जब एक ही स्केच में हो, क्योंकि मिरर एंटिटी तभी यूज़ होगा, ठीक है। तो आपने मिरर की हेल्प से आप एक और गाइड कर्व क्रिएट कर लिया स्केच 3 के अंदर ही। तो ऐसे केस में जब आप लॉफ्टिंग करते हो और आपने सिलेक्ट किया डिफरेंट प्रोफाइल और आप गाइड कर्व सिलेक्ट करने जाओगे तो गाइड कर्व सिलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उससे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा गाइड कर्व सिलेक्ट करके आपने मल्टीपल स्केच क्रिएट करके रखे एक ही स्केच के अंदर, मल्टीपल एंटिटी क्रिएट करके रखे एक ही स्केच के अंदर। तो ऐसे केस में आपको विद दी हेल्प ऑफ सिलेक्शन मैनेजर आप सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप राइट क्लिक करके भी सिलेक्शन मैनेजर ओपन कर सकते हो। सिलेक्शन मैनेजर में क्लोज लूप या ओपन लूप, अभी फिलहाल मुझे एक ही स्केच यूज सेलेक्ट करना है तो ओपन लूप पे क्लिक कर रहा हूँ और मैंने ये कर्व सेलेक्ट किया और ओके कर दिया तो उसने पहला स्केच सेलेक्ट कर लिया। राइट क्लिक, सिलेक्शन मैनेजर, ये सिलेक्ट किया और ओके कर लिया। यानी मल्टीपल एंटिटी आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन मैनेजर। लेकिन एज ए फ्रेशर मैं रिकमेंडेड करूँगा अलग अलग स्केच क्रिएट कर लो तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको ज़्यादा। तो ऐसे भी आप गाइड कर्व यूज़ कर सकते हो, ओके। मैंने ये फेस सेलेक्ट किया। अगर आपको कट करना है, मैंने मुझे यहाँ पे सर्कल क्रिएट करना है, एग्जिट किया। मुझे इसके ऊपर कोई दूसरा शेप यूज़ करना है लाइक हेक्सागन, एग्जिट, लॉफ्ट कट। तो लॉफ्ट कट भी आप यूज़ कर सकते हो इजीली, ओके। यानी लॉफ्ट और लॉफ्ट कट सिमिलर आपका होता है। देन कंट्रोल एन। अगर आपने कोई पाथ क्रिएट मैंने कोई पाथ क्रिएट किया एक एंड पे, चलो मैंने क्रिएट कर लिया कि मुझे इस एंड पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है, ओके। दूसरे एंड पे मुझे सर्कल क्रिएट करना है तो दूसरे एंड पे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफाइल प्लेन बनाना पड़ेगा। मैंने पॉइंट सेलेक्ट किया, ठीक है, उससे कॉन्स्टेंट हो गया, यानी प्रोफाइल प्लेन वहीं पे बनेगा। सेकंड रेफरेंस में मैंने ये कर्व सेलेक्ट कर लिया, यानी उसके परपेंडिकुलर, यानी उसके नॉर्मल डायरेक्शन में प्लेन क्रिएट हो गया मेरा। प्लेन सेलेक्ट किया, प्लेन पे मैंने सर्कल बना दिया। देखिए सर्कल अभी सेंटर पे नहीं बना है, यानी उसके टच में नहीं है। तो आप जब दो अलग अलग एंटिटीज़ को, यानी अलग अलग स्केच के एंटिटीज़ को सिलेक्ट करके आप मेट देते हो, कौन सा देते हो, पियर्स, ओके। एग्जिट, इसको मैंने हाइड कर दिया। सिलेक्ट लॉफ्ट, लॉफ्ट में गया, मैंने डिफरेंट स्केचेस को सिलेक्ट किया वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए, और मुझे ये यूज़ करना है एज ए गाइड कर्व, सेंटर लाइन। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो आपका लॉफ्ट कमांड वर्क नहीं करेगा, एरर क्रिएट करेगा, क्योंकि गाइड कर्व हमेशा एजेस पे होते हैं, सेंटर में नहीं होता है। तो इन केस आपको सेंटर में ही चाहिए तो आप ऐसे केस में सेंटर में सेंटर लाइन यूज़ करते हो, सेंटर लाइन पैरामीटर्स। ऐसे में यहाँ पे आप सेंटर लाइन सेलेक्ट कर सकते हो वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए, ठीक है। गाइड कर्व हमेशा एजेस पे होते हैं, वो भी कॉन्सिडेंट यानी टच में होते हैं, इसलिए आपको पियर्स यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप एक डिस्टेंस पे बनाओगे गाइड कर्व तो वो भी आपका गाइड कर्व वर्क नहीं करेगा। तो ऐसा करके भी आप अपना वॉल्यूम क्रिएट कर सकते। बाउंड्री बॉस, मैंने बताया था कि बाउंड्री बॉस आप स्वीप जैसे भी यूज़ कर सकते हो, और इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉफ्ट और स्वीप ऑल्सो। तो मैंने यहाँ पे पहला प्रोफाइल सेलेक्ट किया, डायरेक्शन 2 में मैंने विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन मैनेजर ये सिलेक्ट कर लिया कर्व और ओके कर दिया। तो स्वीप जैसे भी वर्क कर रहा है, जैसे स्वीप कमांड वर्क करता है, ठीक है।
मल्टीपल स्केचेस सेलेक्ट कर लिए, लॉफ्ट जैसे भी वर्क कर रहा है। अब इस ये अपने अकॉर्डिंग एजेस क्रिएट करके दे रहा है, अपने अकॉर्डिंग एजेस क्रिएट करके दे रहा है, क्योंकि ये मोर फ्लेक्सिबल देन लॉफ्ट होता है, लॉफ्ट से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, इसमें पहले से ही आपके एजेस जो आपके कनेक्टर्स होते हैं रैंडमली कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, बाकी अपने अकॉर्डिंग आप कनेक्टर्स को सेट कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप ये भी सेट कर सकते हो कि मुझे ऊपर से नॉर्मल प्रोफाइल चाहिए, पहले सर्कुलर चाहिए, नीचे से भी मुझे नॉर्मल प्रोफाइल चाहिए। आप ये भी सेट कर सकते हो कि थोड़ा रेक्टेंगल हो, तो नीचे से पहले रेक्टेंगल हो, ऊपर से थोड़ा सा सर्कल हो, तो आप ये भी सेट कर सकते हो। यानी बाउंड्री बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हो। ओके, सेम वे आपको बाउंड्री कट होता है। ऐसा नहीं कि आप लॉफ्ट में नहीं कर सकते, लॉफ्ट में भी ये काम कर सकते हो, बट लॉफ्ट में आपको सिलेक्ट करने पड़ते हैं। लॉफ्ट में आप स्टार्ट और एंड में कंस्ट्रेंट प्रोवाइड करने पड़ते हैं कि नॉर्मल टू प्रोफाइल क्रिएट करना है, नॉर्मल ले लो, फिर आपको एंडिंग में भी आपको नॉर्मल टू प्रोफाइल चाहिए, ये सिलेक्ट करो, तो आपको सिलेक्ट करने पड़ते हैं। बट बाउंड्री में ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऑन द स्क्रीन मिल जाता है विद द फ्लैग, अपने अकॉर्डिंग फ्लैग में आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो बाउंड्री और लॉफ्ट ये ऐसे आप वर्क कर सकते हो। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। बाउंड्री ऑफ लॉफ्ट में आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्केच प्रोफाइल ही रिक्वायरमेंट हो, अगर कमांड यूज़ करनी है तो आप बाउंड्री और लॉफ्ट में अलग वे में भी आप यूज़ कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे 2 रेक्टेंगल बनाए, इनसे मैंने वॉल्यूम क्रिएट कर लिया, इनसे मैंने वॉल्यूम क्रिएट किया। सिलेक्ट कॉन्ट्री में मैंने ये रीजन सेलेक्ट किया कि मुझे अभी फिलहाल यही एक्सट्रूड करना है। मिड प्लेन सेलेक्ट किया, वैल्यू प्रोवाइड कर दी जितनी मुझे वैल्यू देनी, और ओके कर दिया। एक्सट्रूड में गया अगेन, और मुझे सेम स्केच यूज़ करना है तो स्केच ओपन करके स्केच पे क्लिक कर दिया। ठीक है, सिलेक्ट कॉन्टूर में मैंने ये रीजन सेलेक्ट कर लिया कि मुझे ये रीजन करना है। मिड प्लेन वैल्यू और इंक्रीज़ कर दी और ओके कर दिया। यहाँ पे मैंने सेल कमांड यूज़ किया, मुझे सेल कमांड के बारे में हम वापस आएंगे कैसे वर्क करते हैं। ओके किया, यहाँ पे भी मैंने सेल कमांड यूज़ किया और ओके कर दिया। ओके, मैंने लॉफ्ट पे क्लिक किया और लॉफ्ट पे देखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं कि स्केच से ही मैं लॉफ्ट कर सकता हूँ, मैं फेस सेलेक्ट करके भी मैं लॉफ्ट कर सकता हूँ। तो मल्टीपल फेसेस सेलेक्ट करके भी आप लॉफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उनके बीच में ऑटोमेटिकली वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा लाइक दिस वे। बाउंड्री बॉक्स भी यूज़ कर सकते हो कि मुझे ये फेस सेलेक्ट किया और मुझे ये फेस सेलेक्ट किया, इनके बीच में मुझे वॉल्यूम क्रिएट करना है, ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो। इसमें आपने टेंजेंट टू फेस कर दिया, यहाँ से टेंजेंट करना है, यहाँ से भी आपने चलो टेंजेंट टू फेस कर लिया, तो ये चीज़ें भी आप इजीली कर सकते हो। टेंजेंट टू फेस, नॉर्मल टू प्रोफाइल, कर्वेचर बेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आप इजीली कर सकते हो। तो लॉफ्ट और बाउंड्री आप इजीली यूज़ कर सकते हो। बाउंड्री को एज ए स्वीप भी यूज़ कर सकते हो, एज ए लॉफ्ट भी यूज़ कर सकते हो, फ्लेक्सिबल होता है आपको लॉफ्ट के मुकाबले। ऐसे ही आपका लॉफ्ट कट और बाउंड्री कट वर्क करता है। ये आपके वॉल्यूम क्रिएटेड फीचर्स होते हैं, ये आपके वॉल्यूम कट फीचर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट कमांड देखते हैं मॉडिफाइड टूल बार में। और फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडिफाइड टूल बार से जाने से पहले हम होल विजार्ड चेक कर लेते हैं, होल विजार्ड कैसे वर्क करता है। होल विजार्ड आपके स्टैंडर्डाइज होल होते हैं, ठीक है, डिफरेंट स्टैंडर्डाइज आपके होल होते हैं, कस्टमाइज भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस होल विजार्ड पे गया मैं, फर्स्ट ऑफ पोजीशन में कौन से फेस पे आपको होल क्रिएट करना है वो फेस सेलेक्ट करो, उस फेस पे आपको होल कहाँ क्रिएट करना है आप वो प्रोवाइड कर दीजिए। विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट डायमेंशन आप डिफाइन भी कर सकते हो होल की पोजीशंस की, कितने डिस्टेंस से कितने लेंथ कहाँ पे आपके होल लाई करेंगे। अगर आपको और भी होल्स क्रिएट करने हैं, जस्ट सेलेक्ट दी पॉइंट एंड मेक दी होल। आपको होल यहाँ क्रिएट करना है। टाइप पे जाइए, टाइप पे जाके सबसे पहले आपको टाइप सेलेक्ट करने पड़ेंगे। आपके 8 स्टैंडर्ड टाइप ऑफ होल्स होते हैं और एक आपको लेगेसी होल होता है, यानी टोटल आपके 9 टाइप ऑफ होल्स होते हैं आपके। जैसे मुझे काउंटर बोर्ड क्रिएट करने हैं तो काउंटर बोर्ड आप सिलेक्ट कर सकते हो। काउंटर बोर्ड में आपको कौन सा स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना है, सिंपली ड्रैग डाउन। स्टैंडर्ड होल्स में आपको सिंपली ड्रैग डाउन से आपको सिलेक्ट करनी है ये चीज़ें। लाइक ISO यूज़ करना है मुझे, ISO में कौन से टाइप का मुझे यूज़ करना है, हेक्स स्क्रू लाइक AB मुझे यूज़ करना है। मुझे इसमें साइज़ क्या चाहिए, मुझे इसमें M10 साइज़ चाहिए। फिट कैसा होना चाहिए, लूज़, क्लोज या नॉर्मल, इसके आप साइज़ भी इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपको कस्टमाइज साइज़ इंसर्ट करनी तो कस्टमाइज साइज़ भी इंसर्ट कर सकते हो। आपको वो एंड कंडीशन कहाँ तक आपको वॉल्यूम की कट करना है, होल कहाँ तक क्रिएट करना है, कितना बड़ा क्रिएट करना, आप वैल्यू दे सकते हो। और वो आप जो इसकी लेंथ कैलकुलेट कर रहे हो, लेंथ कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हो, विदाउट टिप या विद टिप, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपकी साइज़ वेरी करेगी। विदाउट टिप थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, विद टिप थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। हेड क्लियरेंस भी दे सकते हो, अगर हेड क्लियरेंस आपको प्रोवाइड करना है कि ऊपर थोड़ा सा गैप चाहिए तो आप 10 mm, 5 mm, 15 mm तो गैप भी प्रोवाइड कर सकते हो।
कि इन केस कभी कभी क्या होता है कि हमने होल क्रिएट कर लिए, देन होल हमने जो भी फास्टनर यूज़ करने थे फास्टनर यूज़ कर लिए, देन ऊपर से मुझे फुल मटेरियल फिल करना था, वो भी यूज़ कर सकते हो। मैंने हेड क्लियरेंस को ऑफ कर दिया, मुझे अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। देन आई जस्ट गो एंड क्लिक ओके। तो वैसे ही आपके होल क्रिएट हो जाएंगे जैसे आपने क्रिएट किए होंगे। विद द हेल्प ऑफ सेक्शन व्यू आप चेक कर सकते हैं अपने होल वगैरह, होल विजार्ड, पोजीशन, फेस, और मुझे यहाँ पे होल क्रिएट करने हैं। लेगेसी होल में क्या होता है, स्टैंडर्ड होल में तो आपको नॉर्मली सिलेक्ट करना पड़ता है, सिंपली आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा किस टाइप का आपको स्टैंडर्ड यूज़ करना है। बट लेगेसी होल में आपको सिंपली शेप सेलेक्ट करना है कि कौन सा शेप आपको यूज़ करना है। लाइक सी ड्रिल यूज़ करना है, सी ड्रिल में आपको हर एक पैरामीटर्स मैनुअली इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका स्टैंडर्डाइज डेटा नहीं होता जिसमें सब ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप सिलेक्ट कर लो अपना, ड्रॉप डाउन करके आप सिलेक्ट कर लो अपना। देन होल विजार्ड के बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहते हैं थ्रेड वगैरह, अगर आपको थ्रेडिंग वगैरह क्रिएट करनी है थ्रेड भी आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, थ्रेडिंग आपको कहाँ क्रिएट करनी है, मुझे थ्रेडिंग इन होल्स में क्रिएट करनी है। मेरी फर्स्ट ऑफ ऑल आप बेस सर्कल सेलेक्ट कर लो जहाँ पर आपको थ्रेडिंग क्रिएट करनी है। ऐसा कुछ नहीं है कि होल विजार्ड में जो आपके टैप होते हैं वो टैप आपके नॉर्मली कॉस्मेटिक होते हैं, ठीक है, एक्चुअल नहीं होते हैं। ठीक है, आपने टैप होल सेलेक्ट करके रखा है, टैप होल में आपने चलिए ISO यूज़ कर लिया, जो भी स्टैंडर्ड यूज़ करना था, साइज़ थोड़ी सी इंक्रीज़ कर ली, M10 का यूज़ करना है आपको, और ओके कर दिया। चलिए, कॉस्मेटिक आप थ्रेड यूज़ करते हो तो कॉस्मेटिक थ्रेड में आप शेडेड कॉस्मेटिक थ्रेड सेटिंग ऑन कर सकते हो एनोटेशन पे राइट क्लिक करके। ठीक है, तो कॉस्मेटिक थ्रेड आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करती है कि मे बी आपके वहाँ पर थ्रेडिंग है, अपनी आपको थ्रेडिंग क्रिएट करनी है। आप सेटिंग्स पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ में जाकर डिटेलिंग पे ये ऑप्शन यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। सेम ऑप्शन आप शॉर्टकटली यहाँ से ओपन कर सकते हो एनोटेशन में राइट क्लिक करके। तो कॉस्मेटिक थ्रेड सिंपली रिप्रेजेंटेशन के लिए होती है। अगर आपको एक्चुअल क्रिएट करना है तो आप अपना थ्रेड पे चले जाओ, विद द हेल्प ऑफ थ्रेड आप अपने थ्रेडिंग क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जो होल बना के रखे उन पे क्रिएट कर सकते हो, या फिर अपने अकॉर्डिंग खुद का एक होल क्रिएट करके उस पर कर सकते हो आप, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है। थ्रेड पे गया, थ्रेड में जाके बेस सर्कल सेलेक्ट कर लो। ठीक है, लाइक मुझे इस पर क्रिएट करना है, मैंने बेस सर्कल सेलेक्ट किया। फिर आपको जो थ्रेडिंग क्रिएट करनी कहाँ से क्रिएट करनी है, इस नीचे वाले फेस से क्रिएट करनी है, ऊपर वाले फेस से क्रिएट करनी है। साइज़ क्या होनी चाहिए आपकी थ्रेडिंग की वो सिलेक्ट कर लीजिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल किस टाइप का होगा, इंच डाई होगा, इंच टैप होगा, मैट्रिक डाई होगा। साइज़ क्या होगी, साइज़ सेलेक्ट कर लीजिए। फिर एंगल जहाँ से आपको स्टार्ट करना है वो एंगल आप टाइप कर सकते हो। इसमें कट करना है, ऐड करना है, फिलहाल कट करना है तो कट आपका मटेरियल के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। तो आपको मिरर प्रोफाइल पे क्लिक करना पड़ेगा, अब ये कट करके देगा। ठीक है, अगर ओके कर दो तो ये आपको कट करके दे देगा प्रोफाइल को। अगर आपको ऐड करना है, एक्सट्रूड थ्रेड को ऐड करना है, एडिंग अंदर की तरफ नहीं होगी, बाहर की तरफ होगी, तो प्रोफाइल को बाहर कर लीजिए। ऐसे करके आप थ्रेडिंग वगैरह क्रिएट कर सकते हो। अगर करना हो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड थ्रेड क्रिएट करना है, राइट हैंड साइड करना है, वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। और ये अगर कनेक्ट करना है तो मैं आपको एक कमांड बता देता हूँ, उसके रिगार्डिंग हम बाद में बात भी करेंगे। डैट वाज मूव फेस, मूव फेस पे चला गया। ये फेस मुझे मूव करना है अप टू सरफेस तक, अप टू सरफेस तक, और ओके। तो ऐसे मूव ऑन भी कर सकते हो। होल विजार्ड के बाद नेक्स्ट आता है एडवांस होल। एडवांस होल भी आप यूज़ कर सकते हो। आपको एडवांस होल कहाँ पे क्रिएट करना है, ये नियर साइड होगा आपका। यहाँ पे होल क्रिएट करना है, लोकेशन आपने प्रोवाइड कर दी जहाँ पे आपको होल क्रिएट करना है, और नियर फेस से आपको कितने साइज़ का आपको होल क्रिएट करना है, लाइक 10 स्टैंडर्ड वगैरह ये आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, M10 का क्रिएट करना है। फार साइड आपकी ये होगी जिससे आपको कोई एक डिस्टेंस प्रोवाइड करनी है। ओके, लाइक मुझे यहाँ से कितना mm का मुझे क्रिएट करना है, आप यहाँ पे ये वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको प्रोवाइड करना हो डिस्टेंस ब्लाइंड वगैरह वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हो। यहाँ पे कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, अगर कस्टमाइज़ करना है। इसके नीचे आपको स्टेकअप ऐड करना तो आप ऐड कर सकते हो। नीचे का पोर्शन आपको कैसे होगा, इसमें नीचे का पोर्शन जो होगा आपका नॉर्मली सिंपल मुझे रखना है। उसके आपको डायमीटर क्या रखना है, डायमीटर सेट कर लीजिए उसका।
आप नहीं मतलब एक छोटे छोटे पोर्शंस में आप ये क्रिएट कर सकते हो कि आपकी साइज़ क्या होगी, लेंथ क्या होगी उसका जो आप क्रिएट कर रहे हो। इसके नीचे अगर एक और आपको ऐड करना पोर्शन आप ऐड कर लो, मे बी वो मुझे टेपर चाहिए तो आई जस्ट गो एंड सेलेक्ट अ टेपर साइज़। टेपर चाहिए, टेपर आपको कितना डिस्टेंस से क्रिएट करना है, कितना टेपर होगा, और सारी चीज़ें वैल्यू आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और ओके, तो छोटे छोटे पोर्शन में आप ऐसे ऐसे होल्स क्रिएट कर सकते हो इजीली, ठीक है। जहाँ पे आपको रनर पर वगैरह क्रिएट करना है, यानी मोल्ड इंडस्ट्रीज में वगैरह ऐसे कुछ क्रिएट करना, तो आप विद द हेल्प ऑफ दिस एडवांस होल आप ये क्रिएट कर सकते हो। और मल्टीपर्पज़ वे है, मल्टीपर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं इसे। नेक्स्ट, फिलेट कमांड। फिलेट आपके 4 टाइप के होते हैं: एज फिलेट, वेरिएबल साइज फिलेट, फुल राउंड फिलेट और फेस फिलेट। एज फिलेट में आपको एजेस सेलेक्ट करने हैं। अगर आपने एजेस की जगह पे गलती से फेस भी सिलेक्ट कर तो उस फेस के अलॉन्ग जितने भी एज है उसके वो ऑटोमेटिकली सारे सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो एज फिलेट एज पे वर्क करता है आपका। अब सेम रेडियस के साथ फिलेट लगा सकते हो, मल्टी रेडियस प्रोवाइड कर सकते हो कि जैसे मुझे इस पर अलग रेडियस प्रोवाइड करना है तो आप यहाँ पे अलग वैल्यू टाइप कर सकते हो। जैसे 30 इस फेस पे सिलेक्ट किया मैंने, इस एज को सिलेक्ट किया, इस एज में मुझे 40 चाहिए तो एज 1 पे 30 है, एज 4 पे 30 है, एज 3 पे 20 है, एज 2 पे 20 है, यानी अलग अलग वैल्यू भी टाइप कर सकते हो कि एज 2 10 मुझे 10 चाहिए था, एज 1 पे मुझे 40 चाहिए था, यानी अलग अलग वैल्यू भी के साथ भी आप फिलेट लगा सकते हो, या सेम वैल्यू के साथ भी आप फिलेट यूज़ कर सकते हो। ओके, ये डिफरेंट प्रोफाइल्स होते हैं जिसमें हम फिलेट लगाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम सर्कुलर ही सिलेक्ट करते हैं, बाकी आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। पार्सल फिलेट यूज़ करना, आप पार्सल फिलेट भी यूज़ कर सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस एज पे मुझे फिलेट यूज़ करना है बट पार्सल वे में, मैंने इस पर सेलेक्ट किया पार्सली कि मुझे ये फिलेट यहाँ तक यूज़ करना है। एज 2 पे उसमें मुझे पार्सल यूज़ करना है, तो आप पार्सल फिलेट भी यूज़ कर सकते हो अपने इसके अंदर, फिलेट के अंदर। ओके, आप फिलेट टू चैम्फर इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। राइट क्लिक ऑन योर फिलेट, सेलेक्ट चैम्फर, ओके। राइट क्लिक ऑन योर चैम्फर, सेलेक्ट फिलेट एंड ओके, यानी इजीली आप फिलेट टू चैम्फर, चैम्फर टू फिलेट चेंज कर सकते हो अपनी वैल्यू को। नेक्स्ट आता है वेरिएबल साइज फिलेट। यहाँ पे आपको एट ए टाइम एक ही एज सेलेक्ट करना है, उस एज पे आपको मल्टीपल रेडियस अगर प्रोवाइड करना है देन आई जस्ट गो फॉर दी वेरिएबल साइज फिलेट ऑप्शंस। वेरिएबल साइज फिलेट में आप मल्टीपल पॉइंट्स यानी मल्टीपल रेडियस प्रोवाइड कर सकते हो। कितने रेडियस आपको प्रोवाइड करने उतने आपको पॉइंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। V1 V2 आपको बाय डिफ़ॉल्ट एंड पॉइंट पे आपको मिलेंगे। देन मुझे वैल्यू टाइप करनी है। V1 की मुझे चाहिए 30, V2 की मुझे चाहिए 45, बाकी पॉइंट्स की लाइक इस पॉइंट की मुझे चाहिए 30, इसका मुझे चाहिए 25, यानी अलग अलग वैल्यू आप टाइप करके ओके कर सकते हो, ठीक है। आप जितने पॉइंट क्रिएट करके उतने आप वैल्यू यानी रेडियस पॉइंट प्रोवाइड कर सकते हो। तो ठीक है, अगर आप मल्टीपल रेडियस करने जाओगे तो आप मल्टीपल एजेस भी एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो, उन पर अलग अलग वैल्यू भी दे सकते हो कि मुझे इस पर अलग वैल्यू देनी है, उस पर अलग वैल्यू देनी है, तो आप ये भी चीज़ें कर सकते हो। फिलेट नेक्स्ट है फेस फिलेट। फेस फिलेट में आप दो आपके कॉलम्स होते हैं, उनमें आप मल्टीपल फेसेस सेलेक्ट कर सकते हो, तो जो उन दो कॉलम के बीच में फेसेस हैं उनके कॉमन एज पे वो फिलेट प्रोवाइड करता है। अगर आपने इन दोनों के बीच में अपोजिट फेसेस सेलेक्ट किए तो वो आपको फिलेट नहीं करके देगा। तो फेस फिलेट आपको फेस के ऊपर डिपेंड करके फिलेट क्रिएट करता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एज फिलेट एंड फेस फिलेट? आप फेस से अच्छा तो एज ही यूज़ कर लो, ज़्यादा ईजिली और बेटर वे में आप यूज़ कर सकते हो। डिफरेंस दिखाता मैं आपको एज और फेस का। मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और लेट मी मेक इट 10 और दिस ऑल्सो आर 10 एक्स। आई जस्ट क्लिक ऑन एक्सट्रूड मिड प्लेन और मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया एंड ओके। फिलेट पे गया, फर्स्ट ऑफ ऑल एज फिलेट को सिलेक्ट किया और मैंने ये एज को सिलेक्ट किया। इफ़ आई एंटर द वैल्यू मोर देन द गैप, लाइक मैंने 15 वैल्यू टाइप कर दी, देन ऑल्सो वो उस एज को ही ग्रैब करेगा और उस एज को फुलफिल करेगा फिलेट। बट अगर आपने फेस फिलेट सेलेक्ट किया, अगर आपने फेस फिलेट सेलेक्ट किया और आपने डिफरेंट फेसेस सेलेक्ट किए और आपने वैल्यू गैप से ज़्यादा एंटर की,
तो वो ऑटोमेटिकली उसके बीच में अगर कितने भी एजेस आए वो सबको फुलफिल कर देगा। यानी फेस फिलेट फेस पे डिपेंड होता है, चाहे बीच में आपके 2-3 कितने भी एजेस हो वो ऑटोमेटिक सबको फिल कर देता है। एज फिलेट एज पे डिपेंड करता है तो एज को ही ग्रैब करता है। ओके, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एज एंड फेस फिलेट। आई जस्ट गो फॉर द नेक्स्ट ऑप्शन, दैट वाज फुल डाउन फिलेट। ओके, पेंट ओपन किया मैंने, मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया। मुझे इसकी साइज़ एज्यूम कर लीजिए 100 है और मुझे यहाँ पे फिलेट क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने क्रिएट कर भी दिया फिलेट, मैंने यहाँ पे फिलेट क्रिएट कर दिया। ये यहाँ से और यहाँ से टेंजेंटली कनेक्ट है। तो इसकी रेडियस कितनी होगी इस फिलेट की, कोई एज्यूम कर सकता है? ऑफ कोर्स 100 का आपको हाफ ही मिलेगा ऑटोमेटिकली। यानी इसकी मुझे वैल्यू टाइप करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर टेंजेंटली कनेक्ट है तो जो इसकी थिकनेस होगी इस रेक्टेंगल की, उसका हाफ वैल्यू आपकी रेडियस होती है और इसका डायमीटर 100 ही होगा आपको। ऐसे कुछ केस में आपको वैल्यू टाइप करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो फुल डाउन फिलेट इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। फुल डाउन फिलेट में क्या, आपके 3 कॉलम्स रहते हैं, 3 कॉलम्स। पहले कॉलम में मैंने फेस सेलेक्ट किया, तीसरे कॉलम में फर्स्ट का अपोजिट सेलेक्ट करना है और दूसरे कॉलम में उनका कॉमन फेस, जैसे ये सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली वो फिलेट मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करके दे रहा है, फिलेट लगा के दे रहा है। फिलेट की रेडियस कितनी होगी, जो इसकी थिकनेस होगी उसका हाफ रेडियस उसकी फिलेट होगी। तो ऐसे आप अपना फुल डाउन फिलेट यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, चैम्फर। चैम्फर आपके 5 टाइप के होते हैं, एंगल, डिस्टेंस, वर्टेक्स, फेस और ऑफसेट। एंगल डिस्टेंस, मैंने ये एज को सिलेक्ट किया तो वो एंगल भी लगाएगा और डिस्टेंस भी प्रोवाइड करेगा इस पर। ठीक है, जिस डायरेक्शन में एरो है उस डायरेक्शन में वो डिस्टेंस एज्यूम करता है और उसके रिस्पेक्ट में एंगल एज्यूम करता है, उसके रिस्पेक्ट में एंगल एज्यूम करता है। जैसे मैंने डिस्टेंस इंक्रीज किया, एंगल चलिए मैंने कम कर लिया, तो इसके रिस्पेक्ट में एंगल एज्यूम करेगा। डिस्टेंस तो आप अलग अलग D1 D2 अलग अलग वैल्यू भी दे सकते हो, सेम भी वैल्यू दे सकते हो जिससे आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, वर्टेक्स, इसमें वर्टेक्स पॉइंट ले लीजिए, उस वर्टेक्स में जितनी भी एजेस आपके अटैच है तो हर एक पे आप अलग अलग वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, ऑफसेट फिलेट नॉर्मली नॉन लीनियर एजेस या नॉन लीनियर फेसेस के बीच में हम चैम्फर लगाते हैं, नॉन लीनियर चैम्फर। ठीक है, अभी तो लीनियर है तो ये नॉर्मली डिस्टेंस जैसे ही वर्क करेगा D1 D2 टाइप में। ऑफसेट फेस चैम्फर में क्या होता है नॉर्मली, नॉन लीनियर एजेस के रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ पे मैंने हेल्प ओपन किया, हेल्प में चेक कीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल नॉन लीनियर एजेस है, ये आपको नॉन लीनियर एजेस है, ये आपको नॉन लीनियर है। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे आपके नॉन लीनियर एजेस हो वहाँ पे वो क्या करता है कि जो आप D1 D2 वैल्यू टाइप करते हो तो वो उससे पैरेलल लाइन ओपन क्रिएट करता है और जहाँ पे आपके D1 D2 पॉइंट इंटरसेक्ट होता है उस पॉइंट को ग्रैब करके वो आपको उन नॉन लीनियर फेसेस के ऊपर चैम्फर क्रिएट करता है। ठीक है, दिस वे ऑफसेट फेस हैज़ बीन वर्क। आप ये रीड आउट भी कर सकते हो। और फेस चैम्फर में नॉर्मली फेस आपने सेलेक्ट किया उनके पीछे वो चैम्फर क्रिएट करके दे देगा आपको। तो दिस वे आपका चैम्फर वर्क करता है। चलो एक और वे दिखाता हूँ आपको चैम्फर क्रिएट करने के लिए। अगर आपको चैम्फर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस या एंगल पे आपको रिक्वायरमेंट हो तो मैंने यहाँ पे एक लाइन सेलेक्ट कर दी, उन्हें होल्ड करके अगर आपको चैम्फर क्रिएट करना हो तो कैसे क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, इस लाइन की हेल्प से मैंने विद द यूज़ ऑफ स्प्लिट लाइन कमांड मैंने डिवाइड कर दिया इस फेस को। मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया, इस फेस को सिलेक्ट किया और ओके, आप मल्टीपल फेसेस भी सिलेक्ट कर सकते हो, यानी फेसेस को डिवाइड कर सकते हो। फेसेस को डिवाइड हम इसलिए करते हैं, मे बी मुझे कोई कमांड ऐसा वर्क करना जिसकी रिक्वायरमेंट है मुझे फेस को डिवाइड करना। ठीक है, मुझे ये फेस को डिवाइड करना है, ओके कर दिया, इस फेस को डिवाइड करना है और ओके कर दिया। तो ये आपका अलग अलग पोर्शन में डिवाइड हो चुका है। मुझे इसको भी डिवाइड करना है तो मैंने यहाँ पे भी एक लाइन क्रिएट कर ली। ठीक है, मैंने स्प्लिट लाइन में गया, स्प्लिट लाइन में मैंने इस फेस को डिवाइड किया और ओके कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ शेप ऐसे अचीव करने पड़ते हैं जिसके रिगार्डिंग मुझे मे बी फेस डिवाइड करने पड़ते हैं। देन इवन आपको मोल्ड वर्क में भी बहुत बार हमें फेसेस डिवाइड करने पड़ते हैं, जहाँ पे हमें कुछ एजेस या लाइन वगैरह क्रिएट करने फॉर दी पार्टिंग लाइन। ठीक है, तभी हमें डिवाइड करने पड़ते हैं। तो हाँ, स्प्लिट लाइन का बहुत अच्छा यूज़ है हमारा। यहाँ पे मैं चैम्फर पे गया, चैम्फर को सिलेक्ट किया मैंने, चैम्फर में मैंने फेस चैम्फर सेलेक्ट किया। फेस में मैंने क्या किया कि मुझे होल्ड लाइन सेलेक्ट करना, होल्ड लाइन पे क्लिक किया। पहले तो मैंने होल्ड लाइन सेलेक्ट की, मुझे इसको रेफरेंस एज्यूम करना और इसके बीच में ही मुझे चैम्फर लगाना है। ठीक है,
और फेसेस सेलेक्ट कर लो कि मुझे किस किस फेसेस के ऊपर चैम्फर लगाना है। मैंने ये 2 फेसेस सेलेक्ट किया तो होल लाइन की हेल्प से उनके बीच में ही चैम्फर लगा, चाहे वो होल लाइन कितने भी एंगल पे हो। और ओके, तो ऑटोमेटिकली देखिए विद द हेल्प ऑफ होल लाइन वो वहाँ पे वो चैम्फर लगा देगा। वहाँ आप इस चैम्फर को फिलेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो ईजिली, ठीक है। बट सर्कुलर नहीं कर पाओगे, आपको कर्वेचर कंटिन्यूस करना पड़ेगा, कर्वेचर कंटिन्यूस। तो ऐसे भी आप चैम्फर यूज़ कर सकते हो। तो ये आपके 4 टाइप के फिलेट थे और 5 टाइप के आपको चैम्फर थे। नेक्स्ट है सेल कमांड। सेल कमांड भी क्लिक किया मैंने। सेल कमांड नॉर्मली क्या करता है कि आपका वॉल्यूम का मोस्टली पोर्शन रिमूव कर देता है जो आप थिकनेस प्रोवाइड करते हो। तो बाउंड्री से उतनी थिकनेस के साथ बाउंड्री से उतनी थिकनेस क्रिएट करेगा, बाकी का मटेरियल रिमूव कर देगा। फॉर एन एग्जांपल मैंने ये फेस सेलेक्ट किया, ये आपको पहला कॉलम आता है फेस टू रिमूव, मैंने ये सिलेक्ट किया और मुझे कितनी वैल्यू प्रोवाइड करनी है, लाइक 10 mm 20 mm। तो इस फेस को रिमूव करके बाकी फेसेस पे वो 10 mm की थिकनेस लगा देगा। अगर आप यहाँ पे सेल आउटवर्ड करते हो तो बाहर की तरफ प्रीव्यू देख सकते हो, बाहर की तरफ वो वॉल्यूम क्रिएट करके देगा, बाकी का बीच का मटेरियल पूरा रिमूव कर देगा। सेल इन्वर्ट करते हो, इन्वर्ट बीच का मटेरियल पूरा रिमूव कर देगा, उससे अंदर की तरफ थिकनेस लगाएगा। तो ऐसे भी आप सेल कमांड यूज़ कर सकते हो। इवन इन केस अगर आपको अलग अलग फेस पे अलग अलग थिकनेस देनी तो आप वो भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मल्टी थिकनेस सेटिंग्स। मुझे इस फेस पे मे बी 10 या 20 वैल्यू देनी है, ओके, या फिर मुझे अलग अलग फेस पे अलग अलग वैल्यू देनी है, जैसे इस पर 20 देनी है, मुझे इस पर 30 देना है, या मुझे इस पर 15 चाहिए। और ओके, तो अलग अलग फेस पे आप अलग अलग वैल्यू भी टाइप कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको सेल कमांड वर्क करेगा। नेक्स्ट रिप कमांड देखते हैं। मैंने ये कुछ फेसेस रिमूव कर दिए इसमें से, ओके। सेंटर प्लेन सेलेक्ट किया, लाइक राइट प्लेन दिया, यहाँ पे मैंने स्केच क्रिएट कर दिया। मैं स्केच को क्लोज नहीं करूँगा, अगर मुझे क्लोज करना होगा तो मुझे यहाँ पे भी लाइन क्रिएट करनी पड़ेगी। मैं कन्वर्ट एंटिटी भी यूज़ कर सकता हूँ। कन्वर्ट एंटिटी नॉर्मली क्या करता है, 3D एजेस को, यानी पार्ट मॉडलिंग के एजेस को वो स्केच में कन्वर्ट करता है। इनको एजेस को वो स्केच में कन्वर्ट करते हैं, ओके। अगर क्रिएट करनी हो तो मुझे फ़िलहाल इसको क्लोज कॉन्टूर नहीं बनाना, मुझे ओपन कॉन्टूर बनाना है। तो मैंने स्केच क्रिएट किया, क्योंकि रिब नॉर्मली आपके सिर्फ ओपन स्केचेस पे ही वर्क करता है। क्यों यूज़ में आता है कि हमें इवन वॉल वगैरह क्रिएट करना हो या सपोर्ट मेंबर्स वगैरह क्रिएट करना हो तो मैं रिब यूज़ करता हूँ, ठीक है। रिब नॉर्मली उसी डायरेक्शन में क्रिएट होता है जिस डायरेक्शन में उसे फुल्ली सपोर्ट मिलता है, यानी नीचे उससे पता है कि कहाँ तक आपको वॉल्यूम क्रिएट करना है। बट अगर ये डायरेक्शन में अपवर्ड कर दूँ, फ्लिप मटेरियल कर दूँ अपवर्ड, तो वो रिब क्रिएट नहीं करके देगा। यहाँ पे मैंने थिकनेस टाइप की 10 mm 15 mm जो भी मुझे वैल्यू देनी है, जैसे 15, और वो थिकनेस आप दे रहे हो स्केच के वन साइडेड देना है, अदर साइडेड देना है, या मिड में रखना है आपको वैल्यू, अब वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, ओके। तो वैसे ही आपका सपोर्ट क्रिएट करके दे देगा। अगर आप इसमें ड्राफ्ट प्रोवाइड करना चाहते हो ड्राफ्ट भी प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन ड्राफ्ट के साथ भी आप रिप वगैरह क्रिएट कर सकते हो करना हो तो। मैंने सेल को एडिट किया और कुछ फेसेस को छोड़ दिया, मैंने सिर्फ ऊपर वाले फेस को रिमूव किया मैंने, ठीक है। ऊपर वाले फेस पे मैंने एक स्केच क्रिएट किया। अगर आपका स्केच नॉर्मल टू प्रोफाइल हो, तो आपको ये कमांड यूज़ करना है, नॉर्मल टू स्केच वाला रिप के अंदर, ठीक है। अगर एल टाइप का शेप हो तो आप पैरेलल टू स्केच यूज़ कर सकते हो। अब नॉर्मल टू प्रोफाइल पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, डायरेक्शन आपका उसके नॉर्मल डायरेक्शन में चला जाएगा जहाँ पर स्केच क्रिएट किया आपने। ऐसे केस में आप ये भी यूज़ कर सकते हो पैरेलल टू स्केच, जैसे अगर वन साइडेड क्रिएट करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कि पूरा आपका सपोर्ट क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, तो वो रिप क्रिएट करके दे देगा। लेकिन आपने इसमें मिड प्लेन सेलेक्ट कर लिया कि इसमें हाफ पोर्शन आपका अपवर्ड है, तो ऐसे केस में भी वो रिप क्रिएट नहीं करके देगा, वो एरर बताएगा आपको। तो रिप क्रिएट करने के लिए सब आपका फर्स्ट ऑफ ऑल फंडा क्लियर होना चाहिए कि आपको उसको पूरा सपोर्ट, यानी आगे उसको एंड पॉइंट मिलना चाहिए जहाँ तक आपको रिप क्रिएट करना है। अब अभी मुझे डाउनवर्ड क्रिएट करना है तो मैं नीचे के डायरेक्शन में सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके। रिप क्रिएट करने के लिए ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि स्केच आपको एंड टू एंड कनेक्ट ही करना है। फॉर एन एग्जांपल मुझे इस फेस पे कुछ और क्रिएट करना है, लाइक मैंने सर्कल बना लिया, ओके। रिप सेलेक्ट किया, थिकनेस प्रोवाइड कर दी, जो भी मुझे थिकनेस देनी, जैसे 10 देनी, जो भी मुझे वैल्यू देनी दी,
और ओके कर दिया, तो ऑटोमेटिकली वो सपोर्ट अपने अकॉर्डिंग ग्रैब कर लेगा, वॉल्व तक वो ऑटोमेटिकली एक्सट्रूड कर देगा। तो ऐसे भी आप रिब यूज़ कर सकते हो। रिब एंड सेल में भी क्लियर हो गया होगा आपको। मिरर कमांड, आप मिरर कमांड का यूज़ कर सकते हो। लाइक मैंने कोई बॉडी के ऊपर एक एक्सट्रूड क्रिएट किया और मुझे ये मिरर करना है एक रेफरेंस के अबाव। मैंने रेफरेंस सेलेक्ट किया, राइट प्लेन, मिरर सेलेक्ट किया। और आपको मिरर क्या करना है, फीचर करना है, फेस करना है, बॉडी करना है। इनमें डिफरेंस क्या है, फीचर, फेस एंड बॉडी। लाइक आपने कोई फीचर बना के रखा, आपने फीचर सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया, तो वो फीचर ऑटोमेटिकली उस रेफरेंस के अबाव मिरर हो जाएगा। इसके आपको 3D के मिरर्स यूज़ करने एज़ कम्पेयर टू स्केच, क्योंकि स्केच में आपको स्केच को डिफाइन करना पड़ता है, बट 3D के केस में आपको स्केच को डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो आप सिंपली वॉल्यूम क्रिएट करते हो। ठीक है, ओके। फेस और उसमें डिफरेंस मैं आपको बता रहा था, फेस, फीचर और बॉडी। अगर आपका ऐसा कोई एग्जांपल हो, लाइक मैंने कंट्रोल एन किया, अब मुझे इस होल को विथ रिस्पेक्ट टू फ्रंट प्लेन मुझे मिरर करना है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, चलो रेफरेंस में तो फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर लिया, बट ये होल आपने कोई फीचर नहीं है आपका, ये होल आपका एक्सट्रूड का कमांड, एक्सट्रूड कमांड है। तो ऐसे केस में अगर आपने पूरी बॉडी सेलेक्ट कर ली तो होल आपका ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगा, पूरी की पूरी बॉडी मिरर हो रही है। तो जहाँ पे आपके पास फीचर्स अवेलेबल नहीं हो, सिर्फ फेस हो कि मुझे ये फेस मिरर करना है, ना कि पूरी बॉडी करनी है, तो वहाँ पे हम फेस का यूज़ करते हैं। फेस कमांड में गया, फेस को सिलेक्ट किया और ओके, तो आपको फेस पैड मिरर हो गया। ओके, देन नेक्स्ट कमांड रैप। अगर आपको कोई सिलेंड्रिकल बॉडी पे अगर कुछ एनोटेशंस वगैरह या फिर आपको लोगो वगैरह, कंपनी का नाम वगैरह प्रिंट करना हो, तो ऐसे केस में क्या करोगे, क्योंकि नॉर्मली आप कोई भी किसी प्लेन के ऊपर ही स्केच कर सकते हो, आप किसी प्लेन के ऊपर स्केच कर सकते हो या टाइप कर सकते हो, नोट कर सकते हो, बट आप सर्कुलर बॉडी के ऊपर नहीं कर सकते हो। ऐसे केस में आप क्या करते हो, हम रैप करते हैं, हम रैप कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने एक रेफरेंस बनाया, उसके ऊपर मैंने कुछ टाइप कर दिया, डिज़ाइन वर्ल्ड, सेंटर में लिया। फ़ॉन्ट, डॉक्यूमेंट फ़ॉन्ट यूज़ नहीं करना, मुझे फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो फ़ॉन्ट पे क्लिक किया और फ़ॉन्ट की वैल्यू चेंज कर दी, नियर बाय 36 और ओके। अगर रैप कमांड नहीं होगा आपके पास तो नॉर्मली आप या तो एक्सट्रूड कमांड यूज़ करोगे, और एक्सट्रूड में आपने चलो फ्रॉम चेंज कर दिया कि इस सरफेस के ऊपर से मुझे स्टार्ट करना है एक्सट्रूड करना, और एक्सट्रूड आपने चलो 5 mm किया। बट अगर आप एक्सट्रूड करते हो तो प्रॉब्लम क्या आती है कि हर एक वर्ड आपका नॉर्मल डायरेक्शन में एक्सट्रूड होता है, हर एक वर्ड आपका नॉर्मल डायरेक्शन में एक्सट्रूड होगा, यानी हर एक लेटर आपको स्ट्रेटनेस को फॉलो करेगा, स्ट्रेट लाइन को, क्योंकि नॉर्मल डायरेक्शन में एक्सट्रूड हो रहा है। तो ऐसे केस में अगर आपने गलती से भी एनोटेशन की साइज़ चेंज कर दी, एनोटेशंस की साइज़ चेंज कर दी डिज़ाइन की, तो ऐसे केस में क्या होगा, जैसे मैंने इसकी डिज़ाइन की साइज़ चेंज कर दी और फॉन्ट मैंने ले लिया नियर बाई 72, जिसमें आपको वर्ल्ड बाहर निकल गया, और ओके करोगे तो एरर आ जाएगा, और जैसे एग्जिट करोगे आपका एरर आ जाएगा। एरर क्यों क्रिएट होगा, क्योंकि आपने इस सरफेस से आपने बॉस एक्सट्रूड स्टार्ट किया। ठीक है, चलो फ्रॉम चेंज करके आपने प्लेन ले लिया, या फिर आप नॉर्मली प्लेन करके फिर आपको वर्ड आपके बाहर चले जाएंगे। तो ऐसे में बहुत इश्यूज़ रहते हैं जहाँ पे आपका नॉर्मल डायरेक्शन में एक्सट्रूड होता है। तो ऐसी जगह पे आप क्या करोगे, पहले तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ लाइन को, तो मेरा वर्ड भी आ जाए। एग्जिट किया, मैं रैप करता हूँ, रैप कमांड। मैंने स्केच को सिलेक्ट किया, ठीक है, मैंने स्केच को सिलेक्ट किया, किस फेस पे रैप करना है, इस फेस पे मुझे रैप करना है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या उसके सर्कमफ्रेंस पे रैप कर देते, जो भी आप एनोटेशन, चाहे एनोटेशन की साइज़ कितनी भी बड़ी हो। रैप में आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, एम्बोस, डिबोस और स्क्रैप। लाइक मुझे एम्बोस यूज़ करना है, एम्बोस यानी एक्सट्रूड, डिबोस यानी कट, और स्क्रैप यानी ना ऐड करो ना कट करो। एम्बोस पे क्लिक किया, 5 mm टाइप किया और ओके कर दिया, तो 5 mm एक्सट्रूड हो गया। और इसमें हर एक लेटर रैप होता है, रैप का मीनिंग वो हर एक लेटर आपका सेंटर से बिलोंग करता है, हर एक बॉडी के सेंटर से। या फिर आप अपने अकॉर्डिंग कोई पैटर्न वगैरह डिज़ाइन कर सकते हो, पैटर्न वगैरह क्रिएट कर सकते हो, करना हो तो आपको रैप स्केच 5 इस फेस पे रैप करना है, ठीक है।
इस पर स्क्रैप करना है, सॉरी कट करना है, डिबोस करना है, यानी कट कर देगा। स्क्रैप यानी ना कट करेगा ना ऐड करेगा, ये फेस आपका सेपरेट है दूसरे फेस से बाकी, ठीक है। और मैंने इस बार डिबोस यूज़ किया यानी कट कर दिया। यहाँ पे रैप के मेथड भी आते हैं कि एनालिटिकल फेस है या नॉन एनालिटिकल है, यानी सरफेस वगैरह पे क्रिएट करने हैं तो हम नॉन एनालिटिकल भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये यूज़ किया, उसका पैटर्न भी यूज़ कर सकता हूँ। पैटर्न हम नेक्स्ट डे के सेशन में देखेंगे कितने टाइप के हमारे पैटर्न होते हैं। ये पैटर्न करना है इसके सेंटर के अलॉन्ग, इक्वल स्पेसिंग 360 डिग्री में करना है। कितने मुझे नंबर ऑफ काउंट्स बनाने उतने मैंने क्रिएट किए और ओके कर लिए, ठीक है। तो ऐसे भी आप पैटर्न वगैरह क्रिएट कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आप कैसे कैसे पैटर्न क्रिएट करते हो, ओके। ये आपको मटेरियल का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे मुझे कास्ट एलॉय या कौन सा मुझे मटेरियल प्रोवाइड करना है, 106 एलॉय यूज़ करना है, ब्रास करना है, या एडिट मटेरियल लिस्ट में जा सकते हो। एडिट मटेरियल लिस्ट में आपके बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग सर्च भी कर सकते हो कौन सा मटेरियल आपको यूज़ करना है। लाइक मुझे अभी फ़िलहाल ब्रास यूज़ करना है, मैंने ब्रास इंसर्ट किया। मुझे इसका वेट चेक करना है, एवेलेट पे जाके आप अपनी मास प्रॉपर्टी पे क्लिक कर सकते हो कि कितना वेट ग्राम का इसका वेट है इस ऑब्जेक्ट अगर आप डिज़ाइन करते हो। अगर कोई टैब आपको शो नहीं होता तो राइट क्लिक करो उस टैब के ऊपर, यहाँ पे ऑप्शन आएगा, अगर टैग चेक कर लेना कि वो ऑप्शन चेक है या नहीं है जो आपको टैब शो नहीं हो रहा है। बैक टू पीपीटी। सो बेसिक कमांड हमने कवर कर लिए सारे के सारे, फिलेट, चैम्फर, रिप, सेल, रैप एंड मिरर कमांड्स। सो वी जस्ट कवर द बेसिक पार्ट मॉडलिंग की हम कैसे कैसे वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, कितने वे हमारे वॉल्यूम कट के हैं, मॉडिफाइड टूल बार क्या होता है, होल विजार्ड कैसे वर्क करता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ओके। तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट में अपने सवाल यानी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँ। स्पेसिफिक टॉपिक में अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा एडवांस मॉडलिंग, जैसे अभी तक हमने बेसिक मॉडलिंग देखी कि वॉल्यूम कैसे क्रिएट करता है। नेक्स्ट इसमें कुछ मॉडिफिकेशन देखेंगे कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू।